السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے دوستو، آپ لوگ سن رہے ہیں اونلی اجہری نیٹ ورک کی اسلامک آواز۔ آپ ہمارے چینل اونلی اجہری نیٹ ورک کو سبسکرائب کیجئے اور ساتھ میں اس بغل والے بیل گھنٹی کو بھی دبا دیں تاکہ ہمارا ہر آڈیو اور ویڈیو کا نوٹیفیکیشن آپ کو سب سے پہلے مل جائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام سنی، حنفی، بریلوی مسلمان بھائیوں سے مخاطب ہوں۔ آپ حضرات میرے اس چینل پہ ایک آڈیو سنا ہوگا جو فرقان دیوبندی کے نام سے تھا۔ یہ جو سامنے آپ کو ڈسپلے پہ دکھ رہا ہے، اصلاحی گفتگو، تو میں نے یہ آڈیو آپ حضرات کے لیے پیش کیا تھا۔ تو اس آڈیو میں فرقان دیوبندی نے ہمارے نور حسن رضوی صاحب کے ساتھ بہت ہی اطمینان اور اچھی گفتگو علم غیب کے تعلق سے کر رہا تھا، لیکن آپ حضرات جانتے ہیں جیسے دھیرے دھیرے جب حوالہ دیا جاتا ہے تو یہ لوگ کو مطلب دھیرے دھیرے اپنی بدتمیزی ظاہری کرنے لگتا ہے۔ تو اس دوسری تیسری آڈیو میں یہی ہوا، تو آپ حضرات آگے سماعت کریں گے تو میں یہ آپ حضرات کو بتا دوں کہ یہ جو اصلاحی گفتگو جو علم غیب کے تعلق سے بات ہوئی ہے اس سے، تو اگر یہ آپ لوگ نہیں سنے ہیں تو اسی چینل پہ آپ سن سکتے ہیں۔ اور دوسری گفتگو بھی ہوئی ہے جو ڈسپلے پہ شو کر رہا ہے، تو آپ حضرات یہ بھی سن سکتے ہیں۔ اور ابھی جو تیسری گفتگو ہوئی ہے تو میں یہ آڈیو آپ لوگوں کے سامنے میں پیش کر رہا ہوں، تو آپ حضرات اس میں سنیں گے اس کی بدتمیزی۔ اور یہ آڈیو جو ہے کچھ زیادہ ہی لمبا ہو جائے گا، تو آپ حضرات اس آڈیو کو لاسٹ تک سنیں، کیونکہ جب تک پوری گفتگو آپ حضرات نہیں سنیں گے تو آپ حضرات کو علم میں اضافہ نہیں ہوگا۔ کیا باتیں ہو رہی ہے، کیا کہا گیا، کیا سنا گیا، تو یہ سب پہ بات یہ آڈیو پیش کرنے کا مطلب ہے کہ آپ حضرات کو یہ سمجھ میں آ جائے۔ تو آپ حضرات اس آڈیو کو سنیں اور زیادہ سے زیادہ لوگوں تک شیئر بھی کیا کرے۔ جزاک اللہ خیر۔ جی جناب فرمائیں۔ آپ کے گھر سے ثبوت ہے نا علم الغیب کے بارے میں؟ ہمارے گھر سے کیا ثبوت ہے جناب، ذرا بتائیں گے؟ بھیج دیا فتاوی شارح بخاری جو ہے۔ فتاوی شارح بخاری؟ اچھا، کس کی کتاب ہے یہ؟ شریف الحق۔ کون؟ حضرت مولانا شریف الحق۔ اچھا، تو کیا فرما رہے ہیں وہ ذرا بتائیں گے آپ؟ آپ نے پڑھ لیا تو آپ؟ ارے میں آپ سے سننا چاہتا ہوں جو آپ نے وہ بھیجا ہے نا حوالہ خلیل احمد مہدوی کی کتاب کا، اس سے میں آپ کی گرفت کروں گا ابھی۔ میں تبھی تو کہتا ہوں دیوبندی دھرم میں اگر جھوٹ نہ بولا جائے تو چلے گا، ہی جھوٹ پر ٹکی۔ کیا جھوٹ بولنا ہے یہ تو بتا دو۔ دیوبندی دھرم کی بنیاد ہی جھوٹ پر ٹکی ہوئی ہے۔ دیوبندی لوگ اگر دھوکہ نہ دیں، جھوٹ نہ بولیں، نہ کریں، ایسا ہو ہی نہیں سکتا۔ اچھا بولیں اس میں کیا لکھا ہے ذرا بتائیں۔ کیا بولوں میں تو بھیج دیا، کسی میرے پاس بڑا مال میں کھولوں واٹس ایپ پر لکھ کر بول کے پڑھ کے سنا دوں۔ اب میں میرے پاس کتاب میں کتاب کھولی وہ سنا دوں، میں نے لکھ رکھا۔ ٹھیک ہے بھائی آپ بھیجا ہے نا تو ہے یا نہیں یہ بتائیے۔ ہاں تو میرے پاس آپ نے حوالہ بھیجا ہے یا بھیجا ہوا ہے یا نہیں ہے، یا ڈیلیٹ؟ کیا کہہ رہا ہے صاحب نے آپ کی ٹاور نہیں آ رہا دکھنا کیوں؟ جو میرے پاس آپ نے حوالہ بھیجا ہے وہ حوالہ آپ کے موبائل میں موجود ہے ابھی اس وقت یا نہیں، یا ڈیلیٹ کر دیا؟ واٹس ایپ میں رکھا میں نے آپ کے۔
तो मैं कह रहा हूँ आप अपने व्हाट्सएप में जाके मुझे पढ़ के बताइए जरा क्या लिखा है इसमें। ऐसे एक जैसे बता दूं कैसे व्हाट्सएप में चले जाएं, बात आपसे कर रहा हूँ मैं इस वक्त में। चले जाएंगे जनाब, चले जाएंगे। आपका बड़ा मोबाइल है ना एंड्रॉइड? छोटा है, बता रहा हूँ छोटा है यार, कितनी बार बताऊं। चलिए तो आप ये बताइए कि हमारा अकीदा हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से आलिमुल गैब का है या इल्मे गैब का है? तुम्हारा? हाँ। तुम तो कह रहे हो आलिमुल गैब है। मैंने कब कहा आलिमुल गैब है? नहीं कहा, अब इनकार करने लगा आप। चलिए वो ऑडियो भेज दीजिए जिसमें मैंने ये कहा हो कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। कौन सी ऑडियो में कहा है? एक मिनट पहले बात सुनो। कौन सी ऑडियो में कहा है? आज की, कल की, परसों की, कब की ऑडियो में कहा है? मैं आपसे बार बार यही तो कह रहा था कि नहीं, लोग सुन लेंगे वो कौन सी ऑडियो है। मेरी तो तमाम ऑडियो जो है वो यूट्यूब पे पड़ गई हैं, ठीक है, लोग भी सुन लेंगे। अगर मैंने ये कहा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, ठीक है, तो लोग सुन लेंगे, लोग तो बताएंगे ना। क्या बताएंगे? अगर मैंने आपसे ये कहा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, तो कोई तो सुनेगा ना। लोग सुनेंगे या नहीं सुनेंगे ये बताइए। मेरी बात सुनो पहले। मैंने एक गैब का इनकार किया नहीं किया ये बताएं पहले आप। मैंने नबी के गैब का इनकार किया ये नहीं, ये बता पहले। फिर वही बात मैं सुनो, मैंने ये कहा था कि गैब अल्लाह ने अता किया तो उसे जब भी आलिमुल गैब नहीं कह सकते, ये मैंने कहा है। और आप कह रहे मैंने ये नहीं कहा आलिमुल गैब, ये कौन सी बात हुई? मैंने कहा था आप इत्तिला अलल गैब से पुकार सकते हैं, इत्तिला अलल गैब था, ठीक है, अंबाए गैब ये कह सकते हैं। मैंने ये बात नहीं की आपसे कि आलिमुल गैब कहना दुरुस्त है, ये तो आप गलत कह रहे हैं। मैं तभी तो कहता हूँ देवबंदी धर्म में झूठ बोलना, मक्कारी करना जरूरी है, शर्त है, लाजमी है। अगर झूठ ना बोला जाए, झूठ तो तुमने बोला, सुनिए, कहाँ मान दिया अपने दावत को, कहने लगे फुरकान साहब, मैं तभी तो कहता हूँ आपने जो ये हवाला भेजा है इसी हवाले से आपकी गिरफ्त करूंगा, और खलील अहमद अमेठवी की जो ये किताब का हवाला भेजा है इससे भी आपकी गिरफ्त करूंगा। क्या गिरफ्त करोगे मेरी? ठीक है, जब हमारा अकीदा ही नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, या जब हमारा अकीदा ही नहीं है, तो फिर ये इल्जाम बात से पलट गए आप खुद इनकार करने लगे। आप तो तुमने कहा था आलिमुल गैब नजर आ रहा, आलिमुल गैब। तो मेरी वो ऑडियो दिखा दीजिए जिस ऑडियो में मैंने ये कहा हो कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। मैं कहाँ से दिखला दूं? मैं क्या रिकॉर्ड करता हूँ? मेरी आदत किसी कोई बात रिकॉर्ड करने की, मैं तो अपना बात करता हूँ, सुनता हूँ। हमारे आलिम की किसी किताब से दिखा दीजिए। क्या दिखला दूं? आलिमुल गैब का अकीदा हमारे किसी आलिम ने कहा है? तुम खुद नहीं कह रहे, अभी मैं कह रहा आपसे भी आलिमुल गैब नहीं कह सकता। इंशाल्लाह वो सारी ऑडियो रिकॉर्ड होंगी और लोग सुनेंगे इंशाल्लाह, तो लोग तो बताएंगे ना कि हाँ आपने इस जगह हुजूर को आलिमुल गैब कहा है। अगर मैंने कहीं हुजूर को आलिमुल गैब कहा होगा तो अगर तुम्हारे कान, एक मिनट, रहम फरमाए, झूठ की खबर है, आप इनकार करने लगे आलिम, फिर क्या कह रहे हैं आप? नबी को आलिमुल गैब नहीं कह रहे, फिर क्या कह रहे हैं बताइए? चलो मैं वही तो कह रहा हूँ, मेरी वो कौन सी ऑडियो है? अरे मैं कह रहा हूँ आइडियो मैं नहीं रखता, मुझे आप ये बता दें, सिर्फ इतना बात बता दें कि आप ये कहना चाह रहे हैं अल्लाह के नबी आलिमुल गैब है या नहीं, ऐसे खुद बता दें। आप कभी तो कह रहे हैं आप आलिमुल गैब हैं, अपनी इधर से इधर की बात घुमाए जा रहे हैं आप जी। उस दिन मैंने आपको कुरान की कसम खिलाई थी ना, वो खुदा की कसम खिलाई थी ना आपको? कुरान की कसम खिलाई थी? नहीं, खुदा की कसम खिलाई थी, खुदा की कसम खिलाई थी ना कि सच्चे दिल से बताइए आप अल्लाह पाक की कसम खा के कि आप रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, सच्चे पक्की या नहीं? आपने कहा कि खुदा की कसम कहता हूँ कि मैं हुजूर की कसम खा के कहता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से जो है सच्ची पक्की मोहब्बत करता हूँ। मोहब्बत करने को मोहब्बत तुमसे पहले सुनिए, तो मैंने कहा अगर तुम देवबंदी हो गए तुम मोहब्बत न करते हम तो सीधे से करते हैं, ठीक है। अगर हमें मोहब्बत ना होती, नमाज में दुरूद न पढ़ते, ठीक है, सारी चीजें हम पढ़ रहे हैं, दुरूद शुरू करते हैं, हम जो भी चीज। अरे यार अब इधर उधर को दरूद सुनो यार, मेरी बात दरूद पे मत जाओ, दरूद पे जाओगे उधर भी लपेट दूंगा मैं, जिधर को भागोगे उधर ही लपेटूंगा मैं। तुम ये मत समझो कि ये कहीं छोड़ देगा तुम्हें, मुहसन कमी कहीं नहीं करता है। आप इसी तरह की बात करो, भागो मत कहीं को भी, ठीक है। मैं कहीं नहीं भाग रहा, आप भी कह रहे हैं कि मोहम्मद से क्या नाम है तुम मोहब्बत करते हो नहीं करते, उल्टी बातें क्यों कर रहे हो? क्यों? मैं इसलिए कर रहा हूँ, मैं इसे बरेलियों के अलावा जो कोई मोहब्बत नहीं करते बताऊंगी, तुम सबको काफिर भी मानते हो। एक मिनट,
पहली मर्तबा जो हमारी तुम्हारी सुनो मेरे बात, पहले मेरी बात सुनो। तुम काफिर क्यों मान दो? किसी को सलाम क्यों नहीं लेते तुम? अरे इस बात को सबको छोड़ दो, क्यों बात छोड़ दो? वो मैं बाद में बताऊंगा। बाद में क्यों बताओगे? पहले ये पागलपन के दौरे पड़ने लगे क्या? दौरे क्यों पड़ने लगे? मुझे पहले ये बताओ जो आप कह रहे हैं। ये बताओ अहमद रजा में क्यों लिखा काफिर? अगर कोई किसी को सलाम का जवाब भी दे दो काफिर हो जाएगा, तो इसका मतलब ये सब फालतू बातें बंद करो, या तो ये कह दो मेरे पास जवाब नहीं है। सुनो सुनो, तुम मौलाना अशरफ थानवी वो लगाए, इल्जाम लगाए हैं, अपने अहमद रजा पे इल्जाम लगाओ। पागलपन के दौरे पड़ने लगे क्या? पागलपन के तुम्हारा बनने लगा। अगर तुमसे कुछ तुम्हारी अब सुनो, यही अब खामोश रह के सुनो, खामोश है ना। तुम्हारी बात में खामोश करके नहीं सुनूंगा जब तक आप ये कहते रहेंगे। बोलते रहिए, बोलिए बोलिए बोलिए। थानवी जो है, क्या नाम आप ये कहना चाह रहे हैं, उनको कुफर का फतवा तुमने लगा दिया है, तो अहमद रजा पे भी लगाइए। ये भी मैं बता देता हूँ क्यों लगाइए। अरब व अजम के उलमा ने उसके ऊपर कुफर का फतवा लगाया, और वो काफिर है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन की है, और उसने कहा है माज़अल्लाह कि आपकी ज़ात मुक़द्दसा पर इल्म गैब का हुक्म किया जाना अगर बकौल ज़ैद सही हो तो दरियाफ्त तलब ये अमर है कि इस गैब से मुराद बाज़ गैब है या कुल गैब। अगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बाज़ इल्म गैब मुराद, उसने भी माना है, ठीक है। अगर हुजूर को बाज़ इल्म गैब ही मुराद है तो इसमें हुजूर की क्या तखसीस है? ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी व मजनून बल्कि जमी हैवानात के लिए, बहाइम के लिए भी हासिल है। यानी ऐसा इल्म गैब तो जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों के लिए भी हासिल है। ये हमारे नबी की तौहीन है या नहीं है? क्या हमारे नबी का ऐसा ही इल्म है जैसा जानवरों, पागलों, बच्चों, दरिंदों का? मैंने अभी कहा था कि थानवी का इल्म तो ऐसा है जैसे पागल बच्चे का। तुमको बुरा लग गया और तुमने कहा इतने बड़े आलिम के लिए ऐसा बोल रहे हो। तो मैंने इसीलिए बोला था कि तुमको थानवी से अगर मोहब्बत होगी तो जरूर बुरा लगेगा, वो तुमको बुरा लग गया था और तुमने कहा कि इतने बड़े आलिम के लिए ऐसा बोल रहे हो। कहा था ना, कहा था ना। अच्छा ये बताओ, मैंने तुमसे ये पूछा था उस दिन कि आप आला हजरत को क्या मानते हो, मुसलमान मानते हो या कुछ और मानते हो? तुमने कहा मैं मुसलमान मानता हूँ। कहा था ना, तुमने कहा ना कि मैं मुसलमान मानता हूँ। मुसलमान मानता हूँ ना, अभी भी कह रहा हूँ। तो अब जो है बदकलामी क्यों कर रहे हो? विदती मानता हूँ मैं, विदती मानता हूँ, विदती। तो तुमने तो मुसलमान कहा था और अभी तुमने मुझे बार बार सलाम किया है। अच्छा एक मिनट, हाँ, तुम जो मुझे बार बार सलाम कर रहे हो, क्यों कर रहे हो? तुम्हारा अहमद रजा खान जो क्या नाम है, बुरा सुरा लिखा के किसी को सलाम नहीं कर सकते, देवबंदी जवाब इसलिए कर रहे हो जाएगा, इसलिए कर रहा हूँ मैं। देख भाई क्या कहते हो आप इसमें? तो मैं तो सलाम का जवाब देता ही नहीं ना, हम तो पक्के हैं ना अपने अपने अकायद पे, हम तो पक्के हैं ना। तो हम बुरा कह रहे थे, अहले हदीस की बुरा नहीं कहते, फिर अरे ये सब फालतू बातें छोड़ो, या मेन मुद्दा पे बात करो। छोड़ो एक देख सुन, वक्त को बर्बाद ना कर, सुन बर्बाद नहीं कर रहा, मुझे ये बताओ तुम बराई नहीं कह रहा हो। कुत्ते की औलाद, सुअर के पिल्ले, हराम के पिल्ले, क्यों रे सुअर की औलाद, तुम्हारी बात को नहीं सुनेगा? वक्त को बर्बाद क्यों कर दिया बे? खबीस की औलाद, बात कर रहा हूँ, पहले आप सुन ले। खबीस उद्दार, हराम के पिल्ले, थानवी का नाजायज लुत्फ। चल चुप, चल पहले बात सुन ले। तो हवाला बता कि हम रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहते हैं क्या? सुअर की औलाद, चल बोल। अब तू ऐसे नहीं मानेगा, अब जैसे तू मानेगा वैसे तुझे मनवाऊंगा। सुअर की औलाद, क्यों मनवागा? मैं नहीं मानता। तो सुअर की औलाद तू ये साबित कर कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहाँ कहा है? चल बता, हमने आलिमुल गैब कहाँ कहा है, या हमारे कौन से आलिम ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहा है? चल बता, दलील पेश कर, सबूत पेश कर। मैंने 2 सफ़े तुझे भेज दी हैं व्हाट्सएप पे। तो खबीस के बच्चे, इसमें आलिमुल गैब का कहाँ अल्फाज है कि हमने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब माना? इसके अंदर अल्फाज ये हैं कि आलिमुल गैब नहीं, कहना दुरुस्त नहीं है। तुम आलिमुल गैब क्यों कहते हो जब दुरुस्त नहीं है? हम भी तो यही बात। तो खबीसुद्दहर, हराम के पिल्ले, जब हम आलिमुल गैब हुजूर को कहते ही नहीं, जब हमारा अकीदा ही है कि वो जंगली कुत्ते, तूने कहा नहीं है पहले आलिमुल गैब मानते आलिमुल गैब झूठे। तो सुअर की औलाद, वो मेरी ऑडियो तो भेज दे। पागल, तूने कहा नहीं आलिमुल गैब मानते आलिमुल गैब, इसी पे तो मेरी वो ऑडियो तो, ये कहते हैं आलिमुल गैब नहीं मानते, तुम कहते हो आलिमुल गैब मानते हैं। मेरी वो ऑडियो तो भेज दे, कमीन के बच्चे, मेरी ऑडियो तो भेज दे। वो मैंने किस ऑडियो में कहा है या हमारे पर गया तू? वो जंगली एक सुन गल, ये बता अपनी बात से क्यों कर गया? वलदुज़्ज़िना ज़करुल हिमार वलीद इब्न मुगीरा। अरे
इधर वो वहाँ पढ़े, पहले सुन ले। इब्न तैमिया की नापाक औलाद थानवी भी अपने बाप की औलाद नहीं था, और ये फुरकान भी अपने बाप की औलाद नहीं है। ये बुलंद शहर का रहने वाला, देव का बंदर, देव का पुजारी, देवबंदी फुरकान, ये भी लगता है कि मोहल्ले वालों की मेहनत का नतीजा है। जमात में इसके बाप ने जा जाके इसको भुला दिया और किसी और के नुस्खे से इस दुनिया में ये आ गया। अपनी बगे जाएगा तो कितनी तू उस पर डाल दे, तो कुत्ते की औलाद, अब मैं इसको डालूंगा, ऐसे ही डालूंगा जैसे मैंने बोला है, ठीक है। सुअर की औलाद, चल जा तू, भाग जा, तुझे जो है पागलपन के दौरे पड़ने लगे, तू मेरी बात को नहीं सुनेगा, और ऐसी गुफ्तगू को मैं पसंद नहीं करता, ठीक है। और ये जितना मैंने बोला है, जितना मैंने ये बोला है, ये तेरी बदतमीजी पे बोला। सुअर के बच्चे, जब तू सुनने को बर्दाश्त ही नहीं कर रहा है, चल भाग ले। क्यों कॉल कर दिया भाई फुरकान साहब? क्या हजरत, ये हजरत उजरत मत कहिए। अब आप बदतमीजी पे जब आ ही गए हैं, जब उतर ही गए हैं बदकलामी पे, तो अब हजरत कहने से कोई फायदा थोड़ी है। और वैसे भी तो मैं हजरत नहीं हूँ, ठीक है। आपने जिस तरह की बदकलामी की है, बात को नहीं सुन रहे हैं, और आपने मेरे ऊपर झूठ बांधा कि मैंने जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहा। तो मैंने जब आलिमुल गैब कहा होगा तो वो रिकॉर्डिंग तो होगी ना आपके पास, या आपके पास? सबसे पहले आप ये जानने कि मैं रिकॉर्ड नहीं करता कोई चीज, ठीक है, मैं तो करता हूँ ना, लोग सुन लेंगे, ठीक है। और ये भी आपका रिकॉर्ड हो रहा है, ठीक है। अब दूसरी बात और सुन रहा, सुने सुने, आपने जो हमारे ऊपर इल्जाम लगाया कि तुम लोग जो है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहते हो, तो ठीक है, हमारा अकीदा किसी की किताब में तो होगा, हमारे किसी आलिम ने तो कहा होगा कि हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जो है वो आलिमुल गैब हैं। हमारे बुजुर्ग, हमारे आलिम तो मना कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए आलिमुल गैब का अल्फाज इस्तेमाल करना दुरुस्त नहीं है। हमारे आलिम तो खुद मना कर रहे हैं जनाब। तो वही तो मैंने भेजा आपके पास, आप यही तो दावा कर रहे थे कि अल्लाह के रसूल। एक मिनट सुनो, मेरी तो देखिए बात को पूरा कहिए आप। मैंने क्या कहा था कि मैं आलिमुल गैब हूँ हुजूर? एक मिनट सुन लो पहले मेरी बात, पहले मेरी बात को देखिए, या तो तौबा कीजिए पहले झूठ से, या तो पहले झूठ से तौबा कीजिए। तौबा नहीं, पहले आप सुनाए अपनी बात जो कहना चाहते हैं, फिर मैं बताऊंगा। मैं यही कहना चाहता हूँ कि मैंने आपसे कब कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, ठीक है, वो पेश कीजिए। आपने क्या कहा फिर आलिमुल गैब से मुताल्लिक? मैंने तो ये कहा कि अल्लाह तबारक व तआला ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इल्म गैब अता किया है, और हुजूर को अताई इल्म गैब हासिल है। तो मैंने ये कहा कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं। मैंने तो आलिमुल गैब का आपसे नाम ही नहीं लिया। और हाँ सुनो एक बात, मैंने परसों जो आपसे बात की थी, तो मैंने अपना अकीदा बताया पहले कि मेरा अकीदा ये है, और आपने ये भी कहा था कि नहीं हम ये समझते थे कि आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं। तो मैंने उसमें ये भी कहा था कि ये आपकी गलती है, ये आपकी कमी है, ये हमारी कमी नहीं है, ये आपकी कमी है, आपकी जो है गलत फहमी है। मैंने यही कहा था ना। चलो यहाँ तक बात। एक मिनट, एक पहले सुन लो पूरी बात। जब मैंने आपको उस दिन बता दिया, मैं आपको बता चुका हूँ, समझा चुका हूँ कि हमारा अकीदा ये नहीं है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, ये हमारा अकीदा ही नहीं है। तो फिर आपने फिर आज दोबारा इल्जाम कैसे लगाने की हिम्मत की? सबसे पहले आप ये जान लें, मेरी जो बहस शुरू हुई आपसे इसी वजह से हुई है। आप ये कह जा रहे थे कि आलिमुल गैब है, यही वजह थी। मैंने कब कहा कि आलिमुल गैब है? जब अच्छा एक मिनट, पहले मेरी बात को सुनो। आपने मुझे इसलिए कॉल किया था कि मेरी ऑडियो को रिकॉर्ड को जो आपने यूट्यूब पे डाला है उसको डिलीट कर दो, ठीक है। वही तो हमारी और आपकी बात हुई थी। अगर मैंने कहा है आपसे कि हुजूर आलिमुल गैब हैं और इसी वजह से हमारी और आपकी गुफ्तगू हुई थी, तो उसमें तो मौजूद होगा या नहीं होगा? एक मिनट, आप एक बात पहले मेरी बात को सुनिए, उसमें तो मौजूद होगा ना, अगर इसी बात पे बहस हुई है। फिर बताओ मैं क्या कह रहा था आपसे, मैं क्या कह रहा था, मैं क्या कह किस बात में मैंने? अरे आप जो भी कह रहे हो उसको छोड़िए, पहले आप ये बताइए कि इसी चीज पर बहस हुई थी कि आप लोग हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब मानते हैं, यही बता रहे हो ना आप? तो मैंने तो अपना अकीदा बताया आपको, साफ साफ जाहिर। तो फिर आज मेरे सुल्लाह अब नबी को क्या कहेंगे आप? इत्तिला अलल गैब कहेंगे या आलिमुल गैब कहेंगे? यही तो मैं पूछना चाह रहा था। मैंने आपको एक दिन बताया था, ऐसा है तुम मदरसे में नहीं पढ़े हो बल्कि मदरसे के पीछे पढ़े हो। तुम भी जाहिल हो, तुम्हारे पढ़ाने वाले भी जाहिल हैं, तुम्हारे समझ में भी नहीं आता कुछ यार। बात क्यों नहीं कर रहे? मैं फिर क्या फायदा भाई, जब मैं बता चुका हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को गैब का इल्म अता किया, यानी छुपी हुई चीजों का इल्म अता किया, बताया, तो इसमें आलिमुल गैब कहाँ से आ गया? मुझे ये बताइए। जब अता किया अल्लाह ताला ने, बता दिया,
ठीक है, तो इसमें इसमें मौलवियों का इमेज सुनो, तुम्हारे जो मौलवियों का इल्म, इसके अंदर मैं बयान सुनूंगा आप यूट्यूब पे, इतने सारे मौलवियों का सैयद हाशमी होंगे तुम्हारे एक, वो तो खुद कहते हैं कि अल्लाह के नबी आलिमुल गैब, इस पर मुनाजरा आप देखेंगे उसको लाओ, चलो यही है कि अल्लाह के नबी पेश करो, सबूत पेश करो, वो वीडियो दिखलाओ कि जिसमें क्या बोले हाशमी मियाँ, तुम्हारे जो हाशमी मियाँ ना, हाँ ठीक है, तो अगर उन्होंने हाशमी ने ये कहा है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, चलिए वो वीडियो पेश कीजिए। अच्छा चलो वो भी हाँ, पेश करो अभी, पहले उसके बाद में बात होगी। मेरे पास थोड़ा छोटा है, इसलिए मैं क्या है, छोटा है, छोटा मोबाइल है मेरा। कयामत आ जाएगी पर ये बात साबित ना करोगे कि जो है हाशमी मियाँ ने हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहा है। तो फिर ये तो बता दो, किस बात है हमारे, अभी तुमने मेरे ऊपर इल्जाम लगाया, अब हाशमी मियाँ के ऊपर इल्जाम लगा रहे हो। अरे यार शर्म नहीं आती तुमको इल्जाम लगाने में? देखो, देवबंदी धर्म की बुनियादी झूठ पर टिकी हुई है। देवबंदी लोग झूठ ना बोले धर्म नहीं चलेगा भाई, मैं बार बार बताता हूँ इस बात को। पहले मेरी बात सुन लो, मैं कहना चाहूँ, ये भी बात सुन लो, तुम बीच में बोल दो, पूरी बात हो जाए फिर शुरू कर देना बात। तुमने झूठ क्यों बांधा कि हाशमी मियाँ ने? एक मिनट मेरी बात तो सुन लो, जबरदस्त सुन लो, मैं कह रहा हूँ आराम से सुन लो। माफी मांगो पहले, माफी मांगो। सुन लो मेरी बात, मैं कहना चाह रहा हूँ, बात जब मुकम्मल होगी, क्योंकि आपको मेरा अकीदा मुकम्मल मालूम नहीं है दिखाएगी। तुम्हारा थानवी जी का तो अकीदा मालूम है मुकम्मल, तुम्हारे अकीदे से क्या लेने देना है? तुम तो अपने थानवी के अकीदे पे चलते हो ना, थानवी का अकीदा तो मुकम्मल मालूम है ना। तुम्हें मालूम है अहमद रजा का? थानवी का बताया ना मैंने। तुम्हें अहमद रजा का मालूम नहीं है? हाँ पता है। क्या पता है बताओ? मैं थानवी को थानवी कह रहा हूँ, तुझे बुरा लग रहा है ना, इसीलिए हमें बुरा लगता है कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में ये देवबंदी सड़े हुए बदबूदार लोग हमारे नबी की शान को जो है घटाते हैं, इसलिए हमें बुरा लगता है। किस आलिम ने कहा कि अल्लाह के नबी को गैब नहीं दिया, ये बताने वाले किस आलिम ने हमारे ये कहा है कि अल्लाह के नबी को गैब नहीं दिया? गैब नहीं दिया? हाँ, किसने मना किया है? मैंने मना किया क्या? गैब नहीं देने की बात नहीं है, अभी तुम्हारे भेजे में बात ही नहीं फंसी है। अरे सुनो, बोले मैंने अल्लाह ताला ने देवबंदियों को ऐसा भेजा, इनके भेजे में भेजा ही नहीं भेजा। सुनो, मैंने कहा कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। अल्लाह ताला जब दीन लेता है तो अकलें छीन लेता है, ठीक है, तुम्हारे अंदर भेजा नहीं है, अकल छीन गई है, अकल जो है तुम्हारी सल्फ हो गई है। 15 साल तक तुम्हारी सल्फ रही है ना, इसीलिए तो अहले सुन्नत वल जमात में दोबारा से दाखिल हुआ हूँ। अहले सुन्नत वल जमात हो तुम? अच्छा जी हाँ, वो काफिर कहने वाले सारी दुनिया को काफिर, मैं क्यों किसी को काफिर कहूंगा, खुद काफिर होगा। तुम बताओ, एक मिनट, खुद कह रहे हैं, एक मिनट, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे मुसलमान है या काफिर? बोलो, जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करे वो मुसलमान है या काफिर? तुमने कैसे पहचाना वो तौहीन? पहले जवाब दो, पहले जवाब दो। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में तौहीन करने वाला शख्स मुसलमान ही रहेगा या काफिर हो जाएगा? जवाब दीजिए। जिससे मेरे जो आप मिसाल दे रहे हैं, हलक से जवाब निकालिए, ये सब इधर उधर मत घुमाइए। काफिर है, चलो काफिर है, चलो नहीं, फुल पुख्ता करके बताओ। है लिखा हुआ, खुद मैंने दिखला, जो आपको भेजा उसमें लिखा भी हुआ है, वो काफिर है। काफिर है? मैंने भेजा आपके पास, पढ़ लेना, उसमें लिखा हुआ। अगर उन्होंने ऐसा समझा था तो काफिर है। फिर आगे बोले, काफिर है ना? फिर आगे बोले। चलिए, क्या हमारे नबी का इल्म ऐसा ही है जैसे जानवरों, पागलों, बच्चों का? अरे यार फिर वही बात है। फिर वही बात क्या? मैं तुम्हारी किताब से ही साबित करके दिखाऊंगा। क्या बताइए, क्या आपका यही ईमान है, क्या आपका यही अकीदा है कि जैसा इल्म हुजूर का है ऐसा ही जानवरों का? पूरी इबारत नकल नहीं की गई है, इसमें साफ लिखा हुआ है, सबसे पहली इबारत तो नकल की गई। एक मिनट, तुम्हारे पास किताब है थानवी जी की? तो यहाँ मौजूद हिफ्जुल ईमान मैं भेज देता हूँ, मैं भेज देता हूँ, पढ़ के बताओ। मैं भेज रहा हूँ, चुपिए ना, मैं भेज रहा हूँ आपको। पहले मेरी बात तो सुन लो, एक मिनट मुझे पढ़ के तुम बताओ। देखो यार, एक मिनट सुन लो पहले, मैं आपसे एक बार और बात जानना चाहता हूँ। हेलो, अरे सुनाओ ना यार। मैं जानना चाहता हूँ, तुम अपना अभी वाजे कर दो, मुझे समझ नहीं आता तुम क्या कहते हो। ये बताओ, तुम आलिम लोग नबी को मानते हो, कहते हो, क्या करते हो? तुम बात बदल दो, तो अभी बता दो मुझे। अकल में थानवी की तरह अकल में तुम्हारे भी गोबर फंसा हुआ है क्या? कितनी बार बताऊं? जब एक मिनट सुनो, गैर हम भी नहीं कर रहे, तुम भी नहीं कर रहे। मैंने मेरी जो बहस हुई तुमसे किस वजह से हुई? तू हाफिज है या जाहिल, ये बता यार। किस वजह से हुई ये बता दो। चलो, तू हाफिज है या जाहिल?
अरे तू सुनना पहले। हाफिज है या जाहिल, मुझे ये बता। अरे यार सुनना तो तैयार। तू हाफिज है या जाहिल? मैंने बहस किस बात पर की पहले ये बता, यूट्यूब पे डालना बाद में, सुन पहले ये बता, मैं यूट्यूब पे डालूंगा ही, ये बता मेरे पास 100 रुपए है। अरे 100 रुपया नहीं। अरे सुन ले, पहले मेरी बात अरे यार सुनना, बहस की ये बता दो मुझे, कि तुमने इस बात पर बहस की, मैं ये कह रहा था तुम ये कह रहे थे, ये बताओ पहले। 1 मिनट, ये बता तू हाफिज है या नहीं? अरे यार फिर वही बात, पहले बताना हाफिज है या नहीं यार, बता। मैं कह रहा हूँ मुझे ये अरे यार हाफिज है या जाहिल पहले बताना, फिर मैंने उससे पहले बात हो गई, मैंने बता दिया, तुम सब ये 3-4 बार आपने पूछ लिया होगा, मैंने सब बता दिया। अच्छा ये बता, वो कौन सी दौलत है जो खर्च करने से, बांटने से बढ़ती है, घटती नहीं? और कौन है? हैं? इल्म है ना? अब तेरे समझ में आ जाएगा। चल अब आगे की बात कर, क्या करता है? अब मैं पूछना चाहता हूँ, मैंने आपसे जो बहस शुरू की थी, मैं क्या कहता था, तुम क्या कहते थे? वो सब उस ऑडियो में रिकॉर्ड है ना, तो इसीलिए डिलीट करवाना चाहता था कि मैं इसको फांसूंगा उसको डिलीट करवा के। ना ना क्या तुम्हारे जैसे कितने आते हैं कितने जाते हैं फुरकान साहब? एक मिनट ठीक है, एक मिनट सुन लो, तुमसे सऊदी अरब वाले ने कहा बात करने में इनकार कर दिया आपने साफ। मैंने कब उससे इनकार किया? करवाओ ना उससे कॉल, करवाओ कॉल, फोन कॉल कराओ, फोन कॉल कराओ। किससे? सऊदी अरब वाले से। उन्होंने कहा व्हाट्सएप पे बात कर सकते हैं। मैं व्हाट्सएप पे बात नहीं करता, मैं नहीं करता ना। हक बात करना। मैं तो भारत वाले से भी इंडिया वाले से भी बात नहीं करता व्हाट्सएप पे। अरे मत सुन तो लो पहले मेरी बात। फिर वही बात सुन लो, फायदा क्या होगा मेरा सुनने से? वो सऊदी अरब में रहते हैं, अगर थोड़ा इनकी ये तो समझे, जब आपसे बहस करना। अरे भतेरा पैसा कमा रिया है वहाँ, 100 रुपए खर्ची कर देगा तो क्या हो जाएगा? अरे भतेरा पैसा कमा रिया है वहाँ सऊदिया में, थोड़ा बहुत खर्च कर देगा तो क्या हो जाएगा? तो आपकी कब बात कराना उनसे बताओ। चलो अभी करा दो, अभी करा दो, अभी करवा दूं? हाँ। किसके ऊपर करेंगे बताएं? जिस पे उसको आसानी महसूस होती हो। उन्होंने ये कहा है जो आपने दलीलें पेश की थी, ठीक है, हाँ, तर्जुमा उन्होंने देखा, क्योंकि तर्जुमा और तशरीह भी, तो वो कहते हैं जितनी दलीलें जो मैं पूछ रहा था आपसे, तो वो सारी गलत हैं, और वो उसकी नफी कर रही है। बल्कि हजरत ने मुझसे ये भी कहा और मेरे पास फिर भेजा वो। अच्छा ये बताओ, अबू जहल का वाक़या तो सुना होगा ना, कि अबू जहल एक बार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से कहने लगा माज़अल्लाह कि मैंने माज़अल्लाह ऐसा अल्फाज उसने बोला है मेरा कहने दिल नहीं चाह रहा, यानी हुजूर के चेहरे को माज़अल्लाह गलत बताया, समझा? फिर वहीं हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से उनकी गैरत को यह गवारा ना हुआ और खड़े हुए और बोले या रसूलुल्लाह, मैंने आपकी तरह हसीन और जमील आज तक देखा ही नहीं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दोनों की बात पर कहा सद्दक़ता, तूने सच कहा। तो सहाबा इकराम ने कहा या रसूलल्लाह दोनों बातें कैसे सच हो सकती हैं? ठीक है, अबू जहल ने माज़अल्लाह बुरा बताया और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने अच्छा बताया, और दोनों पे हुजूर ने आमीन कहा और वो कहा कि सद्दक़ता, तूने सच कहा। तो दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं, बता सकते हैं आप? नहीं बता सकते ना, मैं ही बताऊंगा, ये भी अहले सुन्नत बताएगा, ईमान वाला बताएगा ये भी, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आप चुप जाओ, आप खामोश रहो, पहले बात को पूरा होने दो। या जवाब दे रहे हो? जवाब दो, अगर जवाब दे रहे हो तो जवाब दो। चलो मैंने बता भी दिया तुमको थोड़ा सा। आप जो ये कहते हैं ना अहले सुन्नत वल जमात, वो देंगे, जवाब देंगे, और आपने नहीं डाला तो इस्लाह के तौर पर आप इसे ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। आप वो इंसान अपने अखलाक से, तो तुम्हारी मेरी इस्लाही गुफ्तगू हुई थी ना, तो इस्लाही डाली, अब मैं बहस मुबाहिसा के नाम से डालूंगा, ठीक है? अच्छा, अब बहस कर रहे हो तुम, अब इस्लाह नहीं हो रही है, बहस हो रही है। ये बहस नहीं हो रही, मैं बात कर रहा हूं। बहस कर रहे हो तुम, अब मैं जबरदस्ती कर रहे हो। उस दिन इस्लाही गुफ्तगू हुई थी, आज अब जो है तुम अब इस्लाही को बहस के मूड में ले आए हो। बहस के मूड में अगर आपसे मुझे बात कहूंगा, आप ऐसा है तुम अच्छे तरीके से जलील और रुस्वा हो चुके हो। खैर मैं ये बात बता दूं कि हुजूर ने जो कहा है कि सद्दक़ता, तूने सच कहा, ठीक है? तो ये दोनों कैसे सच हो सकती हैं? अबू जहल कहता है माज़अल्लाह हुजूर को बुरा बता रहा है, और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु कह रहे हैं या रसूलुल्लाह, आपसे खूबसूरत मैंने नहीं देखा, आप बहुत खूबसूरत हैं, बहुत हसीन जमील हैं। दोनों बातें सच कैसे हो सकती हैं?
जवाब दें। क्या जवाब दें? मैं जवाब इस बारे में दे रहा, आपसे जो मैं कह रहा हूँ तो ये बता दो कि नहीं पता है, मैं देता हूँ जवाब। मैंने बात आपकी जाली गौर से सुनी ना, मैंने वाकई मैं साफ बताऊं, ईमान की बातें, अकल की बातें, मोहब्बत की बातें तुम गौर से सुनते ही नहीं हो, तुम दिमाग से निकाल देते हो और तुमको पता भी नहीं है, ठीक है। बात जिसके ऊपर चल रही है, ऐसा करो भाई, ऐसा करो, तुम सुनो, ऐसा करो, अब आज के बाद मुझे फोन मत करना तुम, ठीक है। फोन में करना, सुनो मैं एक बार करोगे तो इसी तरह जलील और रुसवा होगे, ठीक है। तुम्हारे बड़े बड़े मुफ्तियों ने आजमा के देख लिया है, ठीक है। बड़े बड़े मुफ्तियों को मैं धूल चटा चुका हूँ, ये मत समझो। आज देवबंद में आगे कब आ रहे हो बताओ? देवबंद में आ जाओ। हाँ, ये मुनाजरा क्या करवा मैं देवबंद में आके? अच्छा मुनाजरा करवाऊंगा, बहुत अच्छा। क्या करवागा? पिटवागा तू किसी से? अच्छा, दम है किसी में? पीटने की बात नहीं सकती मैंने, हाँ पीटने का नाम लिया मैंने। तो फोन पे ले लेना, तेरी देवबंदियत का कोई अगर चिराग है तो, उजला हुआ कोई चिराग है, उजला हुआ कोई चमन है, तेरी देवबंदियत का कोई आलिम है तो ले फोन पे कर दारुल देवबंद में फोन। मैं फोन आसानी से कर देता हूँ, ठीक है। तो करना फोन, कर फोन अपने देवबंद के मुफ्ती को, किसी को। जब तुम्हारी अंधी तकलीफ सुनते हैं तुम किसी, फिर वही बात, मेरी बात सुन, मैं नबी की मोहब्बत की बात बता रहा हूँ, तू कह रहा है कि ये अंधी तकलीफ। अरे मैं मेरी बात भी तो सुन सकते हैं आप, रुक के दो। पहले मेरी बात को तू अधूरा क्यों कर रहा है? तू मेरी बात को, मैं बता रहा हूँ कि अबू जहल ने हुजूर को बुरा कहा। चुप तू। अबू जहल ने बुरा कहा और हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने आपकी तारीफ की, और हुजूर ने दोनों को कहा कि तूने सच कहा। तो दोनों बातें कैसे सच हो सकती हैं? तुझे ये भी नहीं पता हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक आईना है, ठीक है। और हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो देखता है वो अपने आप को पाता है। तो जो अच्छा होता है वो हुजूर में अच्छाई देखता है, जो बुरा होता है वो बुराइयां देखता है। हमने तो अच्छा ये देखी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। नहीं, तुम जैसे हो, तुमने वैसा देखा। थानवी का इल्म जो था कुत्ते स्वर से भी बदतर था, कुत्ते और स्वर की तरह थानवी का इल्म था। तो उसने हुजूर के इल्म को माज़अल्लाह इस तरह बताया, इस तरह तशबीह दी, ठीक है। मैं जानना चाहता हूँ आप आलिम ही हैं मुझसे, और बात। अरे मैं कुछ नहीं हूँ, मैं एक आम इंसान हूँ, अवाम में से हूँ। अच्छा, क्या करते हैं आप? अरे मैं मजदूर हूँ, मजदूरी करता हूँ। मजदूरी करते हैं? हाँ। अच्छा, मजदूरी करते हैं, कहाँ रहते हैं? मैं डिस्ट्रिक्ट रामपुर, यूपी, उत्तर प्रदेश, बरेली शरीफ के पास से हूँ। अच्छा, हाँ, ड्राइवर हूँ, गाड़ी चलाता हूँ। अच्छा, हाँ। अब मैं कहना चाहता हूँ, एक मिनट सुन लो मेरी बात। अब मैं एक बात और सुन लो, मैं कहना चाहता हूँ, आप मुझसे बात कर रहे हैं जैसे, ठीक है। अब मैं कोई एतराज करूँ, आप बुरा मान लेते हैं, आप उसके जवाब देते रहेंगे। भाई मैंने कौन सा बुरा माना? देखो, जब मेरे नबी की कोई तौहीन करता है ना, बात को नहीं मानता, तो मुझे गुस्सा आ ही जाता है। जब मैं कह रहा हूँ बात को प्यार से सुनो, प्यार से जवाब दो, अपनी बात भी कहो, मेरी भी सुनो। उस दिन कितने अच्छे से बात हुई थी, आपने मेरी बात को सुना भी, ठीक है, और अपनी भी बात कही, मैंने आपकी बात को सुना और आपने जो है मेरी बात को सुना, कितने प्यार मोहब्बत से बात हुई। मगर जब आप उसमें जो है जलील और रुसवा हो गए, बात रुसवा की नहीं है, मैंने नहीं कहा था आपसे, आप इस्लाह करें, बिल्कुल करें, लेकिन इस बात का ख्याल रखें, भूल न डाला करें। बात असल ये है कि अभी इस्लाह अगर आप करना चाहते हैं, बात की मुकम्मल तौर पर नहीं हो रही ना, अभी बात ये भी है ना। ऐसे कैसे नहीं हो रही मुकम्मल तौर पे? जो आपका अकीदा है वो आप अपना अकीदा बयान कर रहे हैं, जो मेरा अकीदा मैं अपना अकीदा बयान कर रहा हूँ, मुकम्मल तौर पे क्यों नहीं हो रही है? आप भी पूरी कोशिश कर रहे हैं, हम भी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको समझाएं। पूरी कोशिश नहीं, देखो अगर मैंने आपसे आयतें मांगी थी, मैं उनकी तहकीक करता, तो मैंने बताई कि नहीं बताई? आपने कहा कि कुरान से साबित करो, तो मैंने कुरान से साबित किया या नहीं किया? कम से कम 1 पौन घंटा या सवा घंटा ऐसी कुछ बात हुई थी ना? हाँ, कितनी बात हुई थी, कितनी? मैं भूल गया, कम से कम 1 घंटे से ज्यादा बात हुई है। हाँ, 1 मिनट मेरी बात सुनो, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जैसा आप बात कर रहे हैं। हाँ सुनो, 1 घंटा 23 मिनट बात हुई है उसमें। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जैसा आपसे बात हुई, मैंने आए तो मांगी सबूत क्या, मैंने आपको ये बताया मौलवी साहब आ रहे हैं, अब मैं तर्जुमा देखता, तशरीह देखता, लेकिन आपने पहले इसमें डाल दी, फिर मैं आपसे कहता कि आप चाहें रिपोर्ट कर सकते हैं, फिर असल बात का पता चलता। अब ऐसा है कि आपने पहले ही मुताला कर लिया, मैंने नहीं किया, मेरे पास कोई कुछ है नहीं, अब तुमने रिपोर्ट डाल दी, गलत बात है। मैं इसे इस्लाह के तौर पर मैं क्या, ये गलत बात नहीं है, और ये जितनी भी हमारी और आपकी गुफ्तगू हो रही है, ये भी सब पड़ेगी, ये भी सोचना। बहुत गलत बात है। मैं भी गलत बात क्यों है भाई? आपका अकीदा आप बयान कर रहे हैं, मेरा अकीदा मैं बयान कर रहा हूँ, और आपने जो मेरे ऊपर इल्जाम लगाए हैं वो इल्जाम भी इसमें सब मौजूद हैं। और मेरी जितनी भी ऑडियो है अभी तक की, उसमें एक जगह भी अगर आप मेरा आलिमुल गैब का अकीदा दिखा दें कि हम सुन्नी मुसलमान वफादार रसूल, हम सुन्नी हनफी बरेलवी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये अकीदा रखते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आलिमुल गैब हैं, तो जो चोर की सजा वो मेरी सजा,
मगर मेरे ऊपर आपने इल्जाम लगाया है कि तुम जो है हुजूर को आलिमुल गैब मानते हो, तुमने हुजूर को आलिमुल गैब बताया है, और मैंने एक जगह भी नहीं कहा, और मैंने पहले ही दिन में आपको बता दिया था कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से हम अताई इल्म गैब मानते हैं, ना कि जाती, और ना हम हुजूर के लिए कुल इल्म गैब मानते हैं, जितना अल्लाह को है उतना रसूलुल्लाह को हम ऐसा भी नहीं मानते। और आपने भी कहा हाँ हाँ हाँ, आपने भी हाँ हाँ कहा। ये बात तो मैंने भी कही थी आपसे कि हम तो आपने कही थी, मैं मना थोड़ी कर रहा हूँ, मैं जो खुद जो कह रहा हूँ कि आपने भी कहा था। लेकिन मैंने जो बहस की थी इस बात पे की थी, आप आलिमुल क्या नाम है, मैंने कहा ये बीमारी निकाल के फेंक दो, ठीक है? ये जो कचरा तुम्हारे दिमाग में भरा हुआ है ना आलिमुल गैब का, ये निकाल के फेंक दो, ठीक है? कचरे में डाल दो, कचरे का जो डिब्बा हो ना कहीं रखा हुआ, निकाल दो और फेंक दो उसमें। फिर तुम क्या कह रहे थे ये तो बता दो मुझे, ये बताओ ना। फिर नहीं कह रहा था इतने दिनों से बात हो रही है, लोग समझे सुनेंगे ना तो आपको कहेंगे पागल दीवाना है, कौन है? फिर वही बात, अरे अताई में और जाति में कोई फर्क नहीं है। यही तो मैं कह रहा था कि अरे अताई में और जाति में कोई फर्क नजर नहीं आ रही है क्या? बहुत फर्क है इसके अंदर, यही तो जब फर्क है तो तुमको यहाँ पे शिर्क नजर क्यों आ रहा है? तकबीरतुल ईमान में इसको शिर्क बताया है, और ये भी कहा है कि अगर ये माना जाए कि उसका कुछ जाति है तब भी शिर्क है, और अगर ये जाना जाए कि अताई है तब भी शिर्क है। समझे? तकबीरतुल ईमान जा अताई को किसने कहा? अताई को इस्माइल कतील दहलवी ने। अच्छा, ये बात उन्होंने गलत कही। अगर उन्होंने अताई को मैंने कहा कि जो कुरान से भी साबित हो रहा है, इल्ला मन इर्तज़ा मिन रसूल, माशाअल्लाह सुभान अल्लाह। तो उस किताब में आग लगा देनी चाहिए या नहीं? एक मिनट सुन लो, मैं एक बात आपको बता दूं कि जब उस किताब में गलत लिखा है भाईजान, तो उस किताब को जला देना चाहिए या नहीं? इस किताब में जो हर फॉर्म को काट देनी चाहिए, लेकिन जलाना नहीं चाहिए, क्योंकि और बात अच्छी होंगी फिर हम देनी चाहिए, तो इसके अंदर रिव्यू कर लेना चाहिए बस। माशाअल्लाह, बड़ी अच्छी बात कही, रुजू कर लेना चाहिए, है ना? अगर ये लिखा हुआ है कि अताई भी नहीं देती, अल्लाह ताला ने अताई को दिया था, ठीक है, जब की बात है कुछ मुतला किया था, कुरान खुद कह रहा है। अच्छा, ये जो कायनात में जिसको जो भी इल्म हासिल है वो अल्लाह की अता से है ना, रसूलुल्लाह के सदक़े मिला है ना सबको, जिसको भी जो मिला है मिला है ना। आप हाफिज हैं तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े तुफ़ैल हाफिज हैं, है ना? अल्लाह भी हाफिज है, अल्लाह के रसूल भी हाफिज हैं, और उनके बाद वाले जो उम्मती हैं हुजूर के, वो भी हाफिज हैं, आप भी हाफिज हो आज, और हो सकता है कि आप किसी और को भी हाफिज बना दो। अभी थोड़ी देर पहले मैं ये कह रहा था कि वो कौन सी दौलत है जो खर्च करने से, बांटने से जो है बढ़ती है, घटती नहीं। आपने कहा इल्म, तो जब आपने ये मान लिया कि इल्म वो दौलत है, वो शय है जो कि बांटने से कभी घटती नहीं बल्कि और बढ़ती है, ठीक है? मगर कुछ लोग एतराज ये लगाते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने ये इल्म जो है वो जब हुजूर को दे दिया तो अल्लाह पे नहीं बचा। इस तरह के भी लोग जो है जाहिल लोग होते हैं। आपने नहीं कहा, मगर बहुत सारे ऐसे वहाबी देवबंदी जाहिल होते हैं, कहते हैं अरे भाई जब अल्लाह ताला ने जब नबी को दे दिया तो अल्लाह पे तो नहीं रहा ना। इस तरह की बात करते हैं। एक अफू खान वहाबड़ा है, ठीक है, उसने ये बात बोली है। हाँ, गलत बात है, ये बात गलत है, हम उसे गलत ही जाएंगे, चाहे किसी ने भी लिखी थी, क्योंकि हम अगर लिखे नहीं है, वो एक नंबर का जाहिल है, वो कुछ पढ़ा लिखा नहीं है, अरबी की एक इबारत नहीं पढ़ सकता वो, ठीक है? हाँ, वो गैर मुकल्लिद अहले हदस है। हाँ, तो उसने इस बात को कहा था। बहरहाल बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन करने के लिए, हुजूर के इल्म को घटाने के लिए न जाने किस किस तरह की बातें बना के लेके आते हैं। तो अब आप हाफिज बन गए अपने उस्ताद के जरिए से, फिर आप जो है किसी और को अपना शागिर्द बनाएंगे, पता नहीं कितने बच्चों को आप हाफिज बनाएंगे, ठीक है? फिर आपके जो शागिर्द हैं वो न जाने कितनों को हाफिज बनाएंगे। तो क्या आप हाफिज नहीं रहेंगे जब दूसरे लड़कों को हाफिज बना देंगे? तो रहोगे ना, और आपका हिफ्ज तो मजबूती होगा ना, होगा ना। आपके उस्ताद ने जो पढ़ाया होगा, आपका उस्ताद भी भूला नहीं होगा, आपका उस्ताद भी हाफिज रहा होगा, बढ़ता है ना। तो जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान पाक में ही फरमा रहा है कि अल्लाह तबारक व तआला की ये शान नहीं है कि आम लोगों अपना इल्म गैब तुम्हें अता करे, यानी मेरे तुम्हारे जैसे एरे गहरे नत्थु खैरे को, समझ रहे हैं बात को? समझ लेना
फिर अल्लाह ताला फरमा रहा है हाँ उसके लिए चुन लेता है अपने पसंदीदा रसूलों में से जिसे चाहे अता करे, अता करने वाले है ना। फिर अल्लाह रब्बुल इज्जत फरमा रहा है कि और ये नबी गैब बताने पर बखील नहीं है। तो बताएगा कौन? जो जानता होगा। अरे भाई जिसको किसी चीज का इल्म हासिल होगा वही तो बता पाएगा। अब कुरान की कोई यहाँ पर एक बात और मैं जानना चाहता हूँ, जैसे आपने ये बताया तो आप इसको क्या कहेंगे, यानी जैसे नबी के बारे में आप कहना है कि नबी थे तो किस तरह कहेंगे आप? जैसे हम कहते थे इत्तिलाल थे या देखिए अताई में सब आ जाएगा। अच्छा अताई, ये तो बाद वालों ने, ये वहाबियों ने जो है मनगढ़ंत तावीलें पेश की, ये किसी देवबंदी की नहीं है, मगर देवबंदियों ने वहाबियों की इन तावीलों को लिया है इल्म गैब इनकार करने के ताल्लुक से। तो आप अताई है कहते हैं भाई अता में सब कुछ आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अंबाए गैब और अखबारे गैब, पता नहीं कौन कौन सा गैब वो बयान करते हैं, तो ये सब अताई में आ जाएगा या नहीं आ जाएगा? अता का माना क्या है ये बता दीजिए। हाँ जी आ जाएगा। ये मेरे असल में जो है मैं बताना चाहता हूँ, मेरी गलत फहमी ये थी, नहीं समझ रहा था अभी तक भी कि आप आलिमुल गैब कह रहे हैं। अरे मेरे दोस्त, मेरे भाई, जब मैं पहले ही मना कर रहा हूँ कि हमारा अकीदा ये नहीं है कि हुजूर आलिमुल गैब, हमारा ये अकीदा ही नहीं है, और हमारे आलिम भी मना कर रहे हैं कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आलिमुल गैब कहना जायज नहीं है। अच्छा। तो यार जब मना कर रहे हैं, मैं भी मना कर रहा हूँ मेरे दोस्त, आप इल्जाम पे इल्जाम हमारी तरफ लगाए जा रहे हो भाई। मैंने आपने जैसे कहा इल्म गैब, तो मैंने ये समझा कि आलिमुल गैब इसी से ले लिया आपने, आलिम के माने पूछा मैं जानने वाला, ठीक है। उसके बाद मैंने कहा था कि इत्तिला अलल गैब, ये मेरा मतलब था कि अल्लाह ताला। तो मेरे दोस्त ये जो इत्तिला है या अंबाए गैब है, अखबार गैब है, जितने भी वो तावीलें पेश कर रहे हैं, ये सब अताई में आ जाएंगी या नहीं आ जाएंगे? बस इतना बताइए। हाँ, सब ये माने सब आ जाएंगे, इसी में दाखिल होंगे। तो जब सब दाखिल हो गई तो फिर ये तावीलें पेश करना ही बेकार है। जब हमने कह दिया कि अल्लाह का अता किया हुआ मानते हैं, ना कि हम जाती मानते हैं, तो जब हम जाती मानते ही नहीं तो फिर ये कि हुजूर को ये गैब मालूम था, वो गैब मालूम था, ऐसे मालूम था, वैसे मालूम था, तो ये सब तमाम तरह की जो है लकीरें खींचना, ये सब अच्छी बात नहीं है। ये मालूम है कि आप अताई है कहते हैं भाई अल्लाह ने अता किया है ना, जी अताई है कहना ठीक रहेगा। अब वो जिस ढंग में भी अपने बात को पेश करें भाई। देखो भाई, आप थानवी जी से मोहब्बत करते हो, थानवी जी की तारीफ करोगे, हम जो है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत करते हैं, सहाबा इकराम से मोहब्बत करते हैं, आला हजरत से भी मोहब्बत करते हैं, और आला हजरत से इसलिए मोहब्बत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत हम सुन्नी मुसलमानों के सीनों में बिठाई है। डाल दी कल्ब में अजमत मुस्तफा सैयदी आला हजरत पे लाखों सलाम। समझ गए भाईजान? हम आलिमुल गैब नहीं मानते, ठीक है। आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह है, अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, ठीक है। अब इतना बता के तो शायद समझ में आ गया होगा कि आप भी हाफिज हैं, आपके उस्ताद भी हाफिज हैं, अल्लाह भी हाफिज है, रसूलुल्लाह भी हाफिज हैं, सहाबा इकराम भी हाफिज हैं, अंबिया इकराम, औलिया इकराम, जो मतलब पहले अंबिया अपनी किताबों के हाफिज होंगे, है नहीं है, मगर उनके बाद में कुछ तहरीफें कर दी गई, ठीक है नहीं। मगर ये कुरान वो किताब है, इसमें कोई तहरीफ नहीं होगी, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला ने वादा दिया है, हम ही ने इसको नाजिल किया और हम ही इसकी हिफाजत करने वाले हैं। इसमें कोई हरफ तो क्या, एक आयत तो क्या, एक नुक्ते का भी जो है हेर फेर नहीं करेगा, समझ गए? एक नुक्ता भी खत्म नहीं करेगा इसका। बहरहाल भूल चूक जो होती है वो एक अलग होती है, प्रेस की हो कैसी हो, ठीक है। प्रेस की जो खता हो जाती है, बहुत सारे कुरानों में हो जाता है, जेर जबर का, पेश का, समझ रहे हैं? कहीं जबर की जगह जेर लग गया तो कहीं जेर की जगह जबर लग गया, ऐसा होता है ना, या लगा ही नहीं, ऐसा होता है ना, या कहीं जज़म है तो वहां पेश नजर आ रहा है, ऐसा हो जाता है ना, तो प्रेस की गलती है। मगर हाफिजों के सीनों में तो मौजूद है ना कुरान, है ना, तो वहां हाफिज अपने इल्म से उसको सही कर देता है। बहरहाल बताना मैं ये चाह रहा था कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इल्म पाक की तौहीन करने वाला इंसान या जानवरों पागलों से तशबीह देने वाला इंसान मुसलमान नहीं, ये काफिर है। मैंने ये कहा था आपको कि थानवी तो इतना बड़ा
का इल्म था कि उसका जैसा थानवी को इल्म है ऐसा तो पागलों बच्चों जानवरों को आपको बुरा लग गया था, क्योंकि आप थानवी जी से मोहब्बत करते हैं। मुझे भी बुरा लग रहा है, थानवी जी ने ऐसा लिखा, मुझे भी बुरा लग रहा है, क्योंकि मैं अपने नबी का गुलाम हूँ, मैं अपने नबी का वफादार उम्मती हूँ, मुझे भी बुरा लग रहा है। ठीक है, हाँ, तो आप दर्द को समझिए, दर्द को, कि दर्द क्या है, तकलीफ क्या है। अगर मैंने भी हजरत नबी जी यही कह रहे हैं, अगर मैंने यही मुराद लिया है तो यही देना मकसद मुराद लिया है, क्योंकि इस किताब के अंदर थोड़ा मैंने नीचे भी देखा, आपने पढ़ा होगा, इसमें लिख रहा है। मैं देखिए, मैं अब आपके पास हवाला भेज देता हूँ, ठीक है, हवाला मौजूद है, लीजिए। इसके अंदर जो है ये है कि एक हिस्से को मिटा दिया गया है, ये बात किस तरह ये मतलब लिखी हुई है इसमें। अच्छा, किसी का फोन आ रहा है, रिसीव करूं? हेलो हेलो जमशेद भाई, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी हजरत, खैरियत से हैं? जी बढ़िया, अल्लाह करम। साहब फुरकान साहब से बात चल रही थी। अच्छा, तो बात कीजिए आप लोग। हाँ, तो मैंने कहा लाइए रिसीव कर लिया जाए। बात कीजिए आप लोग, ठीक है? अच्छा, ठीक है, बाद में बात करते हैं आपसे। हाँ, ठीक, लीजिए भाईजान, मैं फुरकान भाई आपके पास हवाला भेजे देता हूँ, है ना, ताकि आपका शक दूर हो जाए। हवाला नहीं, मेरी बात और सुन लो, चलो फिर छोड़ दो हवाले को। नहीं, आप पढ़ लेंगे तो आपको पूरा कुछ देखिए। अगर ये मुराद नहीं होती भाईजान तो फिर इस तरह नहीं लिखते, किताब में से जो है इस इबारत को खत्म कर देते। मगर दिल में कजी है, पता है ये क्यों लिखे गए? थानवी जी को हुकूमत अंग्रेजी हुकूमत की तरफ से 600 रुपए महनामा मिलता था, समझ रहे हैं? इन्हीं सब बातों का, अंबिया इकराम औलिया इकराम की शान व आजमत को घटाने का। किताब का नाम है मकालिमतुस सदरैन, जाके देख लीजिएगा, ठीक है? तज़किरतुर रशीद किताब जो कि आशिक इलाही मेरिठी साहब ने लिखी है, उसमें रशीद अहमद गंगोही साहब फरमा रहे हैं कि मैं हकीकत में जब सरकार का फर्मा बरदार रहा हूं तो झूठे इल्जामों से मेरा बाल भी बेका ना होगा। यानी अंग्रेजी हुकूमत का फर्मा बरदार बता रहे हैं अपने आप को, और अंग्रेजी हुकूमत को रहमदिल हुकूमत, रहमदिल गवर्नमेंट बता रहे हैं। समझे भाईजान? अच्छा, ये बताइए आप, सीधी सीधी बात, क्या हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलावा दुनिया में कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है? अगर कोई अकीदा रखे कि हुजूर के अलावा कोई और भी जो है रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है, तो मुसलमान है या काफिर? वो किस तरह, मतलब पूरे जहानों के लिए, या हुजूर किस तरह रहमतुल लिल आलमीन है? रहमतुल लिल आलमीन कहा किसको जाता है? यानी आलम के लिए रहमत, आलम के लिए रहमत, रहमतुल लिल आलमीन यानी आलम के लिए रहमत। हुजूर के अलावा कोई है? नहीं ना? देखिए, इंसान रहमत तो है, ठीक है? बाप अपने बच्चों, बीवी बच्चों के लिए रहमत है, बच्चे अपने माँ बाप के लिए रहमत हैं या नहीं है? हाँ, इसी तरह बहुत सारी चीजें मैं बता सकता हूं, मगर रहमतुल लिल आलमीन नहीं है, ठीक है? अब अगर जो ये अकीदा रखे कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए खास नहीं है, हुजूर के अलावा भी कोई और रहमतुल लिल आलमीन हो सकता है, ऐसा अकीदा रखने वाला इंसान मुसलमान है या काफिर? आप नबी के बारे में कहेंगे या भाई के बारे में ये पूछना चाहता हूँ, ये और बता दो थोड़ी। आप कोई नबी पैदा होगा क्या? नबी नहीं, लेकिन जैसे हजरत ईसा आएंगे, लेकिन नबी की शरीयत होगी नहीं तो वो रहमतुल लिल आलमीन है क्या? मैं आपसे पूछ रहा हूँ मेरे दोस्त, क्या और नबी रहमतुल लिल आलमीन है? हुजूर के अलावा कमोबेश 1,24,000 पैगंबर आए, उनमें से कोई रहमतुल लिल आलमीन है? हाँ भाई भाईजान, आपकी आवाज गायब हो जाती है यार, बात करते करते मजा नहीं आता। हेलो भाईजान, क्या हुआ, क्या करने लग गए? अच्छा, मैं ये बोल रहा हूँ, कमोबेश 1,24,000 पैगंबर हैं, ठीक है? क्या उनमें से कोई रहमतुल लिल आलमीन है? यार, मौलवियत पढ़ रहे हो, 4 क्लास मौलवियत आपने फारिग कर ली है और आपको ये नहीं पता? मैं तभी तो
मैं बता तो रहा हूँ, किसी के बारे में ये नहीं कहा कि वो रहमतुल्लाह अलमीन है, और मैं ये नहीं कह सकता दलील के साथ में कि हैं कि मेरा नजदीक जब आया नहीं तो हम ये उसको तहकीकात। देखिए, अहले सुन्नत वल जमात और देवबंदियों में यही फर्क है, समझे दोस्त। वो बात को गोल मोल घुमाते हैं। हुजूर के अलावा कोई रहमतुल्लिल आलमीन है ही नहीं। वो तो मैं भी समझ जा रहा हूँ, मैंने कहीं पढ़ा नहीं, तो यही कह रहा हूँ कि इस बात की दलील नहीं है तो रहमतुल्लाह अलमीन है, इसलिए मैंने आगे तीसरी बार पहले कह दिया वो उनकी शरीयत लेकर आएंगे। हाँ, तो फिर अगर कोई ये अकीदा रखता है कि हुजूर के अलावा भी कोई रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है, तो फिर ऐसा शख्स मुसलमान है या काफिर? गोया कि इसने कुफर किया, तो इससे वो दोबारा कलमा पढ़ना चाहिए था। बिल्कुल सही फरमाया आपने। उसको दोबारा से जो है कलमा पढ़ना चाहिए, मगर उसने कलमा नहीं पढ़ा, बगैर कलमा पढ़े मर गया। तौबा का। वैसे तो पंडित लोग भी पढ़ते हैं या नहीं पढ़ते हैं? खाली कलमा पढ़ने से मुसलमान थोड़ी हो जाएगा, जब तक कि उसकी पूरी हकीकत को जो है कबूल ना करे, है ना। हाँ, अब मैं बता दूं किसने लिखा है? मौलवी रशीद अहमद गंगोही ने। क्या लिखा? इस किताब का नाम है फतावा रशीदिया। हाँ जी। नंबर? अच्छा, पेज निकाल लूं? हैं? हवाला निकाल लूं? हाँ, किताब का नाम फतावा रशीदिया है। ठीक है, मैं निकाले लेता हूँ, देख लेता हूँ, है ना। आपको पढ़ के बता दूं। जी बिल्कुल व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, अभी भी बता देता हूँ आपको। तो ऐसा अकीदा रखने वाला जो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से ये कहे माज़अल्लाह कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए ये लफ्ज खास नहीं है, हुजूर के अलावा भी कोई रहमतुल्लिल आलमीन हो सकता है, तो आपने इसको क्या कहा? जी, क्योंकि ये हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए इनकार का लफ्ज इस्तेमाल हो रहा है ना। जी बेशक। एक मिनट, वो हवाला मैं निकाले लूंगा यार, किधर है? नहीं तो फिर घर जाके जो है स्क्रीनशॉट खींच के भेजना पड़ेगा आपको। फिर भी देख लूं, अगर मिलता है तो ठीक है, वरना कोई बात नहीं है। मगर आपने तो कबूल कर लिया ना हजरत के ऐसा अल्फाज हुजूर के अलावा किसी और को कहना, हुजूर के लिए इनकार करना, ये खास हुजूर के लिए नहीं है। इसी तरह की बात वहां कही गई है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ जो इल्जाम लगाया है गैब के ताल्लुक से, और जो तौहीन की है कि ऐसा इल्म गैब तो ज़ैद व अमर बल्कि हर सभी मजनून को हासिल है, इसमें हुजूर की क्या तखसीस है जो कहा है ना, तो यही जो है एतराज है कि इसमें हुजूर की क्या बड़ाई है, वो तौहीन है भाईजान, समझे। हाँ, ये जो लिखा गया है कि इसमें हुजूर की क्या तखसीस है, यानी क्या बड़ाई है। नीचे जो लिखा हुआ है कि हिस्से को मिटा दिया गया, ये पहले आपने नीचे भी लिखा हुआ है कि उड़ा दिया गया हिस्से को। क्या उड़ा दिया गया मतलब? इसमें लिखा हुआ था, जो सफेद भेजा था आपके पास दो। हाँ, इसके अंदर नीचे लिखा हुआ है, नीचे किताब कादरी साहब नाम की मेरा, तो इसमें भी लिखा हुआ है कि एक हिस्से को उड़ा दिया गया है, जो असल बात नहीं कही थी भैया। ये बात तो अभी भी मौजूद है ना, ये तो आपके सामने किताब ही मौजूद है। जब किताब मौजूद है तो फिर अब इसमें तो कोई शक और शुबा की बात नहीं है। हमारा जो एतराज है वो आपकी किताब में मौजूद है। अब जब मौजूद है तो फिर उस किताब के ताल्लुक से वो लोग बताएं। आपके पास कादरी साहब की किताब है जी तुम्हारे? हाँ, तो उसके अंदर नीचे जो लिखा हुआ है, निशान भी लग रहा होगा, नीचे लिखा हुआ कि अगर ये मुराद लिया तो तौहीद है, लेकिन अगर ये मुराद नहीं लिया तो फिर तौहीद नहीं है, तो समझने में थोड़ी वो है, मुझे लिखाना नहीं ना। अरे भैया मुताला कर लिया आपने? मुझे सब भेजे थे पूरा भाई, मैंने देखा है ना, मुताला किया है, तभी तो मैं बोल रहा हूँ। तभी तो मैं बोल रहा था कि मैं इस पे बात करना चाहता हूँ, तो आपने उस पर बात ही नहीं की। दूसरा शब्द जो आप पढ़ के सुना दे जरा, दूसरे में जो लिखा हुआ। अरे अब मैं वो हवाला तलाश कर लूँ रहमतुल्लिल आलमीन वाला,
और रहमतुल्लिल आलमीन वाला ही हवाला देख रहा हूँ और मिल नहीं रहा है। एक अलग से ही जो है इसका फोल्डर बनाना पड़ेगा मुझे। चलिए, हो सकता है इस वाले में मिल जाए। खैर, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान पाक में उलमाए देवबंद ने बड़ी सड़ी सड़ी गुस्ताखियां की हैं, बड़ी खतरनाक तौहीनें की हैं, मगर आप हजरात नहीं जानते हैं। 85% लोग ऐसे हैं जो देवबंदियों के नापाक अकीदे से वाकिफ नहीं है, नावाकिफ हैं, बेखबर हैं। आप भी बेखबर हो भाईजान, आप भी अभी नहीं जानते हो। सिर्फ आपने देवबंदियों का ऊपरी हालात देखे हैं, ऊपरी हालात, समझ रहे हैं दोस्त, अंदरूनी हालात आपने नहीं देखे हैं, इसीलिए आप अभी जो है उनकी तरफदारी कर रहे हैं। मैं भी तरफदारी करता था, मैं भी बरेलवियों को बुरा भला कहता था, समझे भाई। मुझे जो है ना जरा दोनों यहाँ जाना है और दोनों हालियों को जरा बिठाना है। हाँ बिल्कुल बिठाइए, बिल्कुल बात कराइए मेरे दोस्त। मैं तुम समझ रहा हूँ। हाँ जिसमें देवबंद वाला आलिम होगा बड़ा, हाँ, एक बरेलवी होगा सामने। और एक बात बताऊं भाईजान, उसके सामने बात होने के बाद वो बात करेंगे तो मुझे तहसील हो जाएगी कि वो क्या कहना चाहते हैं। बड़े बड़े आलिम हैं, हाँ 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 साफ साफ आ जाएगी कि कौन अपने हक पर है। हाँ हाँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं भी इसी तरह हूँ, फिर बिल्कुल होगा, बिल्कुल बिल्कुल मुझे बेहतर होगा, सामने आ जाएगा। मैं तो मुझे बहस करने से मुझे फायदा नहीं होगा। ऐसा सही बात है, और क्या। जितना मुताला बड़े बड़े आलिमों का, मुफ्तियों का होगा, उन्होंने हदीसें बुखारी ये सब पढ़ रखी हैं जी। अरे यार, तुम कोई भी मुनाजरा उठा लो, ठीक है, कोई भी मुनाजरा उठा लो, हर मुनाजरे में देवबंदियों की शिकस्त हुई है, हर मुनाजरे में। तो ये भी मैं नहीं कह सकता इस बारे में आपसे। कोई भी ऐसा जो है मुनाजरा नहीं है जिसमें देवबंदियों की शिकस्त ना हुई हो। हजरत, मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूँ माजरत के साथ। बोले। ये जो वीडियो बनाई है आपने, थोड़ा सा काट दिया। देखिए, आप कुछ भी कहेंगे, मैं बता रहा हूँ, आप सुन कर मैं ये कहना हूँ कि दलील मांगी थी, मैंने किसी से देखोगे, मैं इसकी तस्वीर देखूंगा, फिर मुझे कोई एतराज होगा आपको मालूम करूंगा, अगर मुझे ठीक लगेगा तो मैं मान लूंगा। फिर मैं ये चाह रहा था, लेकिन आपने शुरू में डाल दी तो इस चीज मिला रहा मुझे। हजरत देखिए, आपने काफी जो है अब गलत सलत आपने जो है अल्फाज इस्तेमाल किए हैं, समझ रहे हैं भाईजान। आप अभी सही रास्ते पर नहीं है, जब तक सही रास्ते पे नहीं आ जाएंगे वो डिलीट नहीं करूंगा, और जब आप सही रास्ते पे आ गए और देवबंदियों का रद्द करना शुरू कर दिया, उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा। सही रास्ते पे मतलब पहले आप देवबंदियों की हकीकत जान लें, फिर इंशाल्लाह मैं उसके बाद जो है उस वीडियो को डिलीट कर दूंगा, और आपसे कह के डिलीट करूंगा, कहो मैं डिलीट कर रहा हूँ अब उसको। तो फैल जाएगी तभी तो आपको एहसास होगा कि हाँ यार, पहले देखो भाई, तभी तो एहसास होगा कि हाँ यार, कभी मैं भी ऐसी बहस करता था, मगर ये बाकी देवबंदी हैं ही बाकी शैतान ये लोग, तभी तो आपको एहसास होगा। मैं भी बरेलवियों को गाली बकता था पहले भाई। मैंने आपको बता दी, मुझे करना है, मैं कर लूंगा इंशाल्लाह, क्योंकि जो अब हम हक पर हैं। अब सारी अरे यार, ये बताओ आप हक पर हो या नहीं? सब अपना अपना कहते हैं, आप क्या करें। यही तो आपको यकीन नहीं है, हमें यकीन है कि हम हक पर हैं। ऐसा तो सभी हक पर वो है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वफादार है, फरमाबरदार है। अच्छा जी हाँ। अच्छा ये बताओ, अच्छा एक बात बताओ, थानवी ये कासिम ननौतवी जी और गंगोही जी यार आपस में एक दूसरे से निकाह किया यार इन्होंने, यार ये बात समझ में नहीं आई। ये हवाला तलाश करते करते मुझे हवाला मिल गया यार। क्या यार किताब का नाम है तज़किरतुर रशीद, जिल्द है 2। हाँ, तो फिर क्या हुआ? इन दोनों का आपस में निकाह हुआ है। निकाह हुआ है? हाँ कैसे हो जाएगा यार, पता नहीं कैसा हो गया भाई। कैसे हो जाएगा? सफा नंबर है 289 जो मेरे पास हवाला है। अच्छा जी हाँ। चलो इंशाल्लाह इस साल जो है मुताला पकड़ा। अच्छा देखिए, मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ठीक है। एक बार इरशाद फरमाया, मैंने एक ख्वाब देखा, समझ रहे हैं, ख्वाब देखा देवबंदी बुजुर्ग ने। अब ख्वाब में क्या देखते हैं ये देखें जरा।
کہ مولوی قاسم صاحب عروس کی حالت میں ہیں. اچھا یہ عروس کا چیز ہوتا ہے؟ ہاں عروس کس کو کہتے ہیں؟ عروج عروس عروج مجھے معلوم نہیں. دلہن. ہاں کہہ رہے ہیں قاسم نانوتوی صاحب عروس کی صورت میں ہیں اور میرا ان سے نکاح ہوا. سمجھ رہے؟ یعنی رشید احمد گنگوہی صاحب کا میرا ان سے نکاح ہوا ہے. سو جس طرح زن و شوہر, یہ زن کون ہوتا ہے؟ ہاں, اور شوہر تو ہے ہی شوہر. زن و شوہر میں ایک دوسرے سے فائدہ پہنچتا ہے, اسی طرح مجھے ان سے اور انہیں مجھ سے فائدہ پہنچا. اب بتائیے. تو انہوں نے خواب بیان کیا حقیقت میں. ہاں تو میرے دوست جو حقیقت میں دیکھا جاتا ہے وہی تو خواب میں آتا ہے نا. خواب تو ارے حقیقت کی بھی بات بتاؤں میں, بڑا محبت تھا ان کو آپس میں, بڑی محبت تھی. محبت ہونا الگ, لیکن یہ خواب دیکھنا اصل نہیں ہے. کبھی کسی دن جائے انسان کو خواب کی بات اصل نہیں ہے. اگر حقیقت ہوتا تو نہیں کہہ. ارے اصل میں آپ حقیقت سے واقف نہیں ہے نا ان لوگوں کی. خانقاہ میں مجمع لگا ہوا تھا, ٹھیک ہے حضرات, سمجھے؟ اور گنگوہی جی آئے اور کہنے لگے قاسم نانوتوی صاحب سے کہ آپ ذرا یہاں چت لیٹ جائیے, سمجھے؟ تو وہ شرما سے کچھ گئے. اب جب شرمائے تو آپ جانتے ہیں کہ شرما کس طرح شرما گئے ہوں گے. منع کیا, مگر وہ شرما کے پھر لیٹ گئے کہ یار یہ ہمارے بزرگ ہیں, بڑے ہیں. اب جب لیٹ گئے تو پھر انہوں نے بھی کمی نہیں کی, یہ بھی جو ہے ان کی طرف کروٹ لے کے لیٹ گئے اور ان کے سینے پہ ہاتھ پھیرنے لگے. سمجھے حضرت؟ جس طرح ایک عاشق اپنی معشوقہ کے دل کو تسکین دیتا ہے, تو اور ان کو جو ہے کچھ شرم محسوس ہوئی. انہوں نے کہا ارے کیا کر رہے ہیں میاں حضرات, کیا کر رہے ہیں, لوگ کیا کہیں گے, لوگ دیکھ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ لوگ کہیں گے تو کہنے دو. سمجھے؟ یہ ان کے حقیقت کے جیتے جاتے کے کارنامے ہیں اور وہی یہ رات میں خواب میں دیکھ رہے ہیں. جی ہاں, یہ جو میں نے حوالہ بتایا ہے یہ حکایات اولیاء کا ہے, اور وہ جو بتایا ہے وہ تذکرۃ الرشید کا ہے. جی ہاں, آپ ان لوگوں کی کتابیں پڑھو یار, جائے گا. ارے یار اہل حدیث کو کیا لے کے آ رہا ہو, اہل حدیث تو کہہ رہے ہیں کہ بریلوی لوگ تو ہمیں بالکل ٹھرا کافر کہیں. ہاں اہل حدیث ہوتے ہیں ان سے کوئی الزام لگتا نہیں ہوگا جیسے ہم تمہارے پہ لگاتے ہیں, ہم پر لگاتا ہے, اور ہمارے پہ مطلب سمجھ میں نہیں آئی بات, کیا کہنا چاہ رہے ہو آپ؟ میں کہنا چاہ رہا ہوں جو اہل حدیث ہوتا ہے نا, اہل حدیث, ہاں تو وہ مطلب ان کے تو کوئی ایسے بڑے عالم ہیں جن کے وہ بات مانتا ہوں یا ہم ان کے لیے ایسے, وہ تو غیر مقلد ہیں, وہ سب سے بڑے عالم خود ہی ہو گئے جو بھی ان میں اہل حدیث بن جائے. وہ تو کسی عالم کو ہی نہیں مانتے. ان سے کہو کہ تمہاری جماعت کا نام کیا ہے, تمہارے عالموں کا نام کیا ہے, سمجھے؟ تو وہ تو عالموں کا بھی انکار کرتے ہیں. ایک پاکستان کا کوئی عالم تھا تو وہ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو معاذ اللہ گمراہ قرار دے دیا تھا. تو میں نے کہا تو اپنا نام بتا, اپنی جماعت کا نام بتا, اور تیری جماعت میں جو اکابر ہیں جن کو تو مانتا ہے ان کے نام بتا. تو بولا نہیں میں تمام عالموں کو مانتا ہوں, اور میں ان کو مانتا ہوں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں. تو میں نے کہا چل اہل حدیث جماعت میں جو قرآن و حدیث کے مطابق ہیں ان کے نام بتا. تو ایک ایک کر کے سارے عالموں کو گمراہ قرار دے گیا, سارے عالموں کا انکار کر دیا اس نے. اور وہ ویڈیو موجود پڑی ہے نیٹ پہ, اگر دیکھنی ہو تو بول دیجیے گا, لنک بھیج دوں گا میں آپ کو. جی ہاں, وہ حضرت کیا نام ہے, میں پہلے جن کا فون تھا نا سعودی عرب کا, ہاں میں پہلے بریلوی تھا. ارے پہلے سبھی سنی ہوتے ہیں, سبھی بریلوی ہوتے ہیں میرے بھائی. تھانوی جی نے 40 سال رہ کے کانپور میں میراث شریف پڑھا ہے. پہلے وہ بھی تو سنی تھے, ان کے باپ دادا بھی تو سنی تھے یار, ان کے نانا بھی تو سنی تھے. پہلے تو سبھی سنی تھے. اسماعیل دہلوی کا پورا خاندان سنی ہے. ہاں پہلے تو سبھی سنی ہے دوست, پہلے تو سبھی جو ہے وفادار رسول تھے. اب جو دیکھو یار سنو, یہ جو اتنے فرقے بنے ہیں تو مسلمانوں میں سے تو بنے ہیں. تو پھر اسی طرح خراب کر رکھا میرے بھائی اگر میری ایک بات غلط لگ رہی ہو تو وہ بتائیے کہ تمہاری یہ بات غلط ہے.
इनसे मैंने रात बात की, मगर जी ऐसे ऐसे बात है, तो मैंने ये कहा मुझसे। अरे निकलने नहीं देते ये देवबंदी। जब मैं इनसे निकला था ना तो चौराहों पे मेरा घेराव होता था, कह रहे नूर हसन तुझे क्या हो गया रे, गुमराह हो गया रे, बिदती हो गया रे, क्या हो गया। मैंने कहा मुझे जो हो गया वो होने दो, मैं तुमसे बाद में बात करूंगा। समझे? वो नहीं कह रहे हैं क्या नाम है, अगर मौलवियों का नाम लेते रहो उनसे दुश्मनी तो गलती हुई है। अरे कुरान हदीस को तो मानोगे, कुरान हदीस क्यों मानते हैं बस? तो तुम कुरान हदीस को भी कहाँ मानते हो? उनसे बोलो कि तुम कुरान हदीस को भी कहाँ मानते हो। मैंने तुमको कुरान हदीस से हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अता किया हुआ इल्म गैब हासिल की बताया आपको। अल्लाह तबारक व तआला ने अपने नबी को इल्म गैब अता किया है ना, तो मैंने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ताल्लुक से कुरान पाक की आयतें पढ़ पढ़ के सुनाई थी ना आपको, तो आपको तो मान जाना चाहिए था, मगर आप फिर भी नहीं मान रहे हैं। तो कहाँ तुम कुरान हदीस को मान रहे हो? कुरान हदीस को मानने के लिए कहना ये तो एक ढोंग है। वो लोग ढोंग रचाते हैं ये बात कह के। भाई हम कुरान और हदीस से ही तो बता रहे हैं सब कुछ। अब तो मुझे जो है ऐसा करना पड़ेगा हजरत, मैं बताऊँ आपको। बताएं भाईजान। जो बात अच्छी होंगी उनको लेनी पड़ेंगी, और बिल्कुल भर की हैं, लात मारो उस बात को जो हमारे नबी की शान में तौहीन करती हो। घर भर की बातें में खत्म करनी पड़ेंगी, चाहे वो अहले हदीस हो या कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे तुम्हारे बड़े कोई भी हो, कोई भी हो, हमारे आलिम की कोई एक गलती बताओ। जो काम करना जिस तरह जायज है, ठीक है, उसी तरह हमारे आलिमों ने बताया है। अच्छा ये बताओ, किसी जाहिल की गलती को जो है आलिमों पे फिट किया जाएगा क्या? नहीं ना, बात आलिम की मानी जाती है ना। हाँ, तो हम हमारे जो आलिम है वो आपके आलिमों की पकड़ करते हैं, ना कि आपके जाहिलों की। आपकी जमात में बहुत सारे लोग ऐसे हैं, जुआरी हैं, शराबी हैं, कबाबी हैं, और अहले सुन्नत में भी बहुत सारे हैं, अहले हदीसों में भी बहुत सारे हैं, शियाओं में भी बहुत सारे हैं। तो ऐसे लोग सब जगह मिलेंगे, नाचने गाने वाले, समझे, चोरी चकारी करने वाले। तो क्या इन लोगों को लेके जो है उलमा को एतराज लगाओगे कि तुम समझाते नहीं हो? नहीं करोगे ना? तो फिर ऐसे लोग सब जगह मिलेंगे, ठीक है। आलिम की बात बताओ कि आलिम ने कहाँ कहा है कि ऐसा करो वैसा करो। गलत बात जो कोई जाहिल बेचारा अपनी कमिलमी की वजह से कोई काम गलत कर रहा है, तो उसे ये बताओ कि भाई ये काम गलत है, इस तरह नहीं करना चाहिए, इस तरह करना चाहिए। यही बताओगे ना। किसी इंसान को बुखार आ गया, ठीक है, तो उसके बुखार की दवा करोगे, उसके बुखार का इलाज करोगे, या उस मरीज को खत्म करोगे? बुखार खत्म करोगे ना, या मरीज को खत्म कर दोगे? तो उसकी गलतफहमी दूर करो। एक बात और जानना चाहते थे, नबी ने फरमाया था 73 फिरके होंगे जी, तो अब ये 73 फिरकों में बताता एक जन्नती होगा, बाकी जहन्नम में, तो या हमेशा हमें जहन्नम में रहेंगे जो और फिरके हैं, या बिल्कुल हमेशा हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे। अच्छा, देखो मोमिन जो है ना, मोमिन, मोलना का बयान है, इसके ऊपर आप सुनना जरा। हाँ, उन्होंने तो मना किया है कि अबदी नहीं रहेंगे, बल्कि हमेशा नहीं रहेंगे, जहन्नम में सजा मिलेगी जो उन्होंने बिदअत ईजाद किया है। बाकी ये बताइए, जो फिरका ही काफिर है, जहन्नमी है, अल्लाह के नबी ने फरमाया ना कि 72 फिरके जहन्नमी है, सिर्फ एक फिरका हक पर है, जन्नती है। तो हमारे नबी ज्यादा इल्म रखते हैं या इलियास घुम्मन ज्यादा इल्म रखता है? ना, उन्होंने ये बात तो मानी है जहन्नम के बारे में। जब मानी है तो उसने ये क्यों कहा कि नहीं सारे फिरकों में से जो है लोग जन्नत में जाएंगे? ये तो हुजूर की हदीस का इनकार आ गया भाईजान। सजा पाकर जाएंगे, सजा पाकर। सुनिए, एक मिनट, तो बात दलील करते हैं ना, मुझे बात सुनिए। एक मिनट दलील के साथ जवाब। हाँ, एक मिनट। हुजूर ने जो बात कह दी, क्या वो बदल सकती है? बदल नहीं सकती। देखो आप ये देखो की बात तो छोड़ दो भाईजान। जब हुजूर ने फरमा दिया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे और एक फिरका हक पर होगा, वो कयामत तक हक पर रहेगा, बाकी 72 फिरके जहन्नमी होंगे, 72 फिरके बनेंगे और वो सारे के सारे जहन्नमी होंगे, ठीक है। तो जब जहन्नमी होंगे तो फिर इसमें इलियास घुम्मन क्यों टांगा ला रहा है? वही तो हमेशा नहीं रहेंगे, हमेशा ही जहन्नम में रहेंगे। साबित कौन से करूंगा? मैं साबित यहाँ से करूंगा। मैं साबित कर रहा हूँ आपको कि अल्लाह तबारक व तआला का फरमान कुरान पाक में है कि अल्लाह तबारक व तआला बड़े बड़े गुनाहगारों को बख्श देगा, ठीक है, सिवाय काफिर और मुशरिक के। जब रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इस बात का ऐलान फरमा दिया कि मैं बड़े बड़े गुनाहगारों के जो है शफाअत कराऊंगा, बड़े बड़े गुनाहगारों की। सहाबा इकराम ने पूछा, या रसूलल्लाह बड़े बड़े गुनाहगारों की आप शफाअत कराएंगे?
کیا چوروں اور زانیوں کی بھی آپ شفاعت کرائیں گے؟ سمجھ رہے ہیں؟ یہ حدیث ہے. اس ٹائم پہ چور اور زانیوں کو جو ہے بہت بڑا گناہ مانا جاتا تھا. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، اور فرمایا کہ سوائے کافر اور مشرک کے، کافر اور مشرک کے. سمجھ رہے ہیں؟ اللہ رب العزت کا بھی یہی فرمان ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا بھی یہی فرمان ہے، اور اللہ تعالیٰ کا قرآن میں فرمان ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے وعدہ وعید میں وعدہ خلافی نہیں فرماتا. تو جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کیا اس سے پھر ہٹ کے کرے گا؟ نہیں نا. اللہ تعالیٰ نے جو وعدہ فرما دیا کہ صرف گناہگاروں کی بخشش ہوگی، کافر اور مشرک کی بخشش نہیں ہوگی. تو جو ایمان کے ساتھ دنیا سے جائے گا، ٹھیک ہے، یہ اس جماعت کی بات چل رہی. سنیں مسلمانوں میں گناہگار نہیں ہے کیا؟ ایمان تو سب کا ہے نا. ارے بھائی سنیے اب تھانوی جی دیکھیے جو انسان کفر کے ساتھ یہاں سے مرا تو وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا یا جنت میں بھی جائے گا؟ وہ ہمیشہ توبہ کو آدمی نہیں جانتا کہ توبہ کرنی ہے ایسا کوئی پتہ. ارے جب وہ توبہ کر لے گا تو پھر کافر ہی کیوں رہے گا؟ بس تو پھر بغیر توبہ کے جائے گا تو کافر ہوا نا. آپ بھی کیسے ثابت کریں گے کہ اگر انہوں نے کفر کا کلمات لکھے بھی ہیں تو توبہ نہیں کی؟ یہ ثبوت ہے کہ نہیں؟ بھائی اعلیٰ حضرت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے اتنے خطوط بھیجے تھانوی کی طرف، بہت زیادہ سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ اس پہ جو ہے اڑ گیا. اور پھر تھانوی جی کے جو چیلے چپاٹے تھے وہ بھی اس میں بحث کر گئے، لڑ گئے، اور اس کی عبارت پر بہت ساری بحثیں ہوئی ہیں، آپ کو ابھی پتہ نہیں ہے، ٹھیک ہے. تھانوی جی کی اس عبارت پر اتنی بحث ہوئی ہے، اتنی لڑائی ہوئی ہے کہ جو تھانوی جی نے کہا ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو اس میں دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے کل غیب، اس اور اگر یہ جو ہے بعض علم غیب مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے، ایسا علم غیب. اب یہ جو جملہ ہے ایسا، ٹھیک ہے، کسی نے کہا ہے کہ ایسا جو مراد ہے وہ اس قدر کے معنی میں ہے، کسی نے کہا ہے کہ اس طرح کے معنی میں ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، کسی نے کچھ کہا ہے، بہرحال ٹھیک ہے. اور ایک دوسرے کو کافر کہہ رہے ہیں، ایک کہہ رہا ہے تسبیح کے لیے دیا ہے، دوسرا کہہ رہا ہے اس قدر اس معنی کے لیے دیا ہے. ارے نہ جانے کس لڑائی میں یہ الجھ گئے ہیں، ٹھیک ہے. انہی کی کتابیں موجود ہیں، سمجھ گئے دوست. آپ اس پنگے میں نہ پڑو، اور رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین اپنے دل سے کبھی مت کرنا، ٹھیک ہے. اور جو توہین کرے گا وہ مسلمان نہیں ہے، اور جو کافر مرے گا اس دنیا سے، ٹھیک ہے، وہ ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جہنم میں جلے گا. اور میرے آقا نے فرمایا صرف ایک ہی فرقہ حق پر ہے، اور قیامت تک ایک جماعت ایک فرقہ حق پر رہے گا، اور وہ الحمدللہ ہم ہیں، جو بزرگان دین کی جماعت ہے، جو ولیوں والی جماعت ہے. جی ہاں، جو انبیاء کی توہین کرے گا وہ مسلمان کیسے؟ انبیاء کی توہین کرنے والا کیا مسلمان ہو سکتا ہے بھائی جان؟ نہیں نا. آپ نہیں کر رہے ہیں، مگر آپ اس جماعت میں رہ رہے ہیں جس جماعت میں انبیاء کرام کی توہین کی جاتی ہے. آپ اس جماعت میں رہ رہے ہیں، آپ اس جماعت والوں کو مسلمان کہتے ہیں، مسلمان مانتے ہیں. اور اب میں نے یہ آپ کو بتا دیا، آپ کو پہلے پتا نہ تھا مگر اب پتا ہو گیا. ابھی بھی اگر ان کو مسلمان مانیں گے تو یہ کفر آپ کی طرف پلٹ کے آئے گا. اب میں نے یہ آپ کو بتا دیا ہے، انجانے کی بات الگ تھی، اب آپ جان گئے ہیں. آپ جس طرح بتا رہے ہیں کہ توبہ کے بارے میں آپ نے بتایا نہیں ابھی تک بھی. ارے ہاں، میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ جو آپ نے یہ پوچھا کہ 72 فرقوں میں سے جو ہے سب فرقوں کے لوگ جنت میں جائیں گے، تو کیسے چلے جائیں گے؟ کون کہتا ہے کہ سب فرقوں کے لیے؟ کون سی حدیث میں آیا ہے بتائیے، ایک حدیث پیش کیجیے. مولانا گھمن سے ایک حدیث پیش کروائیے کہ 72 فرقوں کے لوگ، ان میں سے کچھ لوگ جنت میں جائیں گے، کچھ جہنم میں جائیں گے. کہلوا دیجیے، حدیث پیش کرا دیجیے. میں نے کہا ہے کہ جو جنت وہ تو چلے جائے جنت میں، لیکن بعد والے سزا پائیں گے، سزا پانے کا پھر وہی بات، یہاں تو گناہگاروں کی بات ہے یار، وہ جو ہے گناہگاروں کی بات ہے، مسلمان گناہگاروں کی. جو مسلمان گناہگار ہیں وہ سزا پا کے جنت میں جائیں گے، ٹھیک ہے. اللہ تعالیٰ چاہے تو بغیر سزا کے ان کو جنت عطا کر دے، اور چاہے تو ان کو سزا دے.
तो फिर और सजा पाकर जाएंगे और नहीं जा सकते ये दूसरों से। काफिर जो होगा वो तो डायरेक्ट जहन्नम में जाएगा ना। मैं एक बात सुनिए मेरी काफिर देखिए सुनिए, हिसाब और किताब क्यों रखा गया? एक मिनट मेरी बात और सुन लें। बताएं। बरेलवी की जो आवाम है वो गुनाहगार है, जिससे वो जन्नत में जाएगी, बाकी जो सब है वो सब जहन्नम में जाएंगे। फिर ये बताइए काफिर और मुशरिक की बख्शिश है या नहीं, ये बताइए। वो तो कुरान में मना है, ये तो सब है। जब कुरान में मना है तो फिर आप बस फैसला कर लीजिए। जब काफिर और मुशरिक की बख्शिश ही नहीं है तो मुसलमान ही जन्नत में जाएंगे ना। अगर अजाब भी दिया जाएगा मुसलमानों को तो अजाब कुछ लम्हे के लिए, कुछ टाइम के लिए अजाब दिया जाएगा, बाकी फिर अल्लाह ताला उन्हें जहन्नम से निकाल के जन्नत में दाखिल फरमा देगा। ठीक है, ये मुसलमानों का वाकया है, ठीक है, काफिर और मुशरिक का वाकया नहीं है। अब मुझे एक बात और बताएंगे आप, अगर जैसे आवाम क्या खिलाफ थोड़ा बहुत, लेकिन जो आवाम है मुझे मालूम नहीं कि उलमाए दीन का क्या अकीदा, तुम्हारा क्या अकीदा, अहले हदीस का क्या अकीदा, तो वो भी इस जवान में मुब्तला होंगे नहीं। इसीलिए तो मैं काम करता हूँ। देखिए, जिसे पता नहीं है, इल्म नहीं है, जानकारी नहीं है, ठीक है, उसके ऊपर कोई हुक्म नहीं है किसी के। देखिए किसी के वो कहाँ जाएंगे? अरे उन्होंने तो ना तौहीन की है ना तौहीन करने वालों के साथ है। देखो देवबंदी की बात मानता, बरेली की नहीं मानता, मतलब देवबंदियों की बात कर रहे हैं। मैं ये कहना चाह रहा हूँ जैसे कि हमारे देवबंदी अवाम है। अच्छा ठीक है, देवबंदी अवाम है, हाँ ठीक है, हाँ। हमारी आवाम है, तुम्हारी आवाम वो समझती हमारी आवाम हमें पसंद है, हाँ। वो पसंद है। हाँ। अब ये बताओ कि जो हुक्म जहन्नम में रहने का जो आवाम के लिए जो है या सिर्फ सभी के लिए है, ये पूछना चाह रहा हूँ। फिर वही बात भाई, मैं हूँ, आपको ये बता चुका हूँ कि थानवी का ये कुफ है। मुझे बता दो, पहले इल्म नहीं था। एक मिनट, आपको भी मैं ये समझ रहा हूँ कि आप भी अवाम है, ऐसे करके मान लीजिए, ठीक है। आप आलिम है परिस्ता के लिए, मगर मैंने अवाम बता दिया आपको, ठीक है। आप अपने आप को अवाम साबित कर लीजिए, ठीक है। अहले सुन्नत हम जो काम करते हैं वो इसीलिए काम करते हैं ताकि अवाम जान ले, जो बेखबर लोग हैं, अनजान लोग हैं, वो खबरदार हो जाएं, वाकिफ हो जाएं, ना वाकिफ ना रहें, ठीक है। मान लीजिए मैंने आपको बता दिया कि थानवी जी की किताब हिफ्जुल ईमान में इस तरह की तौहीन की गई है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में, ठीक। अब आपको इस चीज का इल्म हो गया, हुआ या नहीं हुआ? हो गया ना। अब अगर इस किताब को देख के, इस किताब को पढ़ के भी आप थानवी जी को मुसलमान कहेंगे तो फिर आपका ठिकाना थानवी जी के साथ ही होगा। अब आप अनजान नहीं हैं, अब आप जान गए हैं, जान चुके हैं, ठीक है। अब अनजान देखिए ये मसले मसाइल की बात आलिम लोग बताएंगे, ठीक है। ये मसले मसाइल की बात आलिम लोग बताएंगे, ठीक। मगर मैं आप ओहो, मेरी बात को तो सुनते नहीं हो। जिस चीज को किसी के ताल्लुक से किसी को मालूम नहीं है, ठीक है, उस पर कोई फतवा लगता है क्या? नहीं लगता ना। तो फिर जब उस अवाम को पता ही नहीं है, वो बेचारे खुद आलिम नहीं है, गैर आलिम है, ठीक है, तो अल्लाह ताला उसके साथ जो फैसला चाहेगा करेगा, जब उसको इल्म ही नहीं है तो। मगर हमारा जो काम है, हम इसीलिए अवाम को बताते हैं, आपको भी बता रहे हैं, ठीक है। यूट्यूब पे डालने से काम नहीं चलता, बल्कि इंसान जो पूरे कहीं आ गए वहाँ बता रहे। यूट्यूब पे डालने से कैसे काम नहीं चलेगा? बहुत सारे लोग देख रहे हैं, बता रहे हैं, मुझे फोन भी करते हैं कि माशाल्लाह नूर हसन भाई बहुत अच्छा काम करते हो आप, इन देवबंदियों के मुंह से ही सारी चीजें जो है उगलवाते हो आप, बहुत अच्छा काम करते हो। जिस चीज का ये इनकार करते हैं उसी चीज को फिर बाद में कबूल करते हैं। जिस चीज को नबी के लिए, अंबिया के लिए इनकार करते हैं, अपने बुजुर्गों के लिए तस्लीम करते हैं। तुम तो आवाम को भी काफिर बताते हो, जो दूसरे फिर मैंने कब कहा? मैंने आपको कहा काफिर? मैंने आपको कहा अभी तक काफिर? बरेली समझते हैं, मैं इसमें क्या है? फिर वही बात के बरेली भी समझते हैं। मैंने आपको अभी तक काफिर कहा? 3-4 दिन से बात हो रही है मेरी और आपकी, आपको मैंने कहा कि आप काफिर हैं? सलाम क्यों मिला आपने? क्या है? मैंने इसलिए सलाम का जवाब नहीं दिया कि तुम थानवी को मुसलमान मानते हो और थानवी के चेलों में पढ़ते हो, थानवी के चेलों से पढ़ते हो, थानवी के मदरसे में पढ़ते हो। जी हाँ, तो तुम्हारे अंदर जो है वो देवबंदियत के कीड़े कुल बुला रहे हैं, इसलिए मैंने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया। मैं सलाम का जवाब उसके देता हूँ जो सुन्नी सही अकीदा वफादार रसूल होता है। और आप मुझसे बात करने के लिए आए थे ग्रुप से,
तो मुझे तो मालूम था ना कि इनके अंदर कीड़ा कुल बुलाया है, मैंने इसलिए जवाब नहीं दिया। मुझे पता चल गया कि ये देवबंदियत का जो है चाहने वाला है, देवबंदियत का शहदाई है, इसलिए मैंने आपके सलाम का जवाब नहीं दिया, बस पता चल गया। मैंने आपको तो नहीं कहा कि तुम काफिर हो, मैंने कहा क्या? मैंने तो नहीं कहा ना आप काफिर हो। अगर तुमसे कोई और बात करना चाहे, रिश्तेदार तुम्हारा वो देवबंदी हो, तो उसे सलाम नहीं करोगे, सलाम का जवाब नहीं दोगे? मैं करता ही रही हूँ, मैं डंके की चोट पे कहता हूँ। बताओ क्या अल्फाज हैं आप? क्या अल्फाज है? सही है अपनी जगह अल्फाज, ये हदीस पाक है। अरे ये वो पुरफितन जमाना है कि जिस जमाने में अपने ईमान को बचाना इस तरह होगा गोया जिस तरह हथेली पे आग का अंगारा रखना। अच्छा, जी हाँ, ये वो पुरफितन जमाना है, ये वो पुरफितन दौर है। अब चलो, अब आखिरी वक्त हो लिया, अब नहीं कहीं आखिरी वक्त हो लिया मतलब समझा नहीं, आखिरी वक्त कैसा? बस सुना। क्या जाने वाले हो क्या? एक दो बात इसके साथ कहूँगा। सबसे पहली बात आपसे जो मैं मांग रहा था ना, दलील बार बार मैं बता रहा हूँ आपको, जिस आपने कुरान से दलीलें दी थी, हाँ, पूछ रहा था मैं, उसका पहला तर्जुमा तस्वीर देख करके फिर फिर मैंने निशानी को लगा ली जहाँ से आपने बताया है। अरे यार तुम कहोगे तो मैं थानवी जी के कुरान से साबित कर दूंगा, थानवी जी के तर्जुमे से यार। ये बात में बहुत सही है, मैं कह रहा हूँ इस बात को, लेकिन अभी जो ये थी ना, जो उसे काट देती है, हालांकि मेरी जिसमें बहुत हुई नहीं है, बात ये है। मैं काटूंगा तो नहीं, अब नहीं काटूंगा, मैं काट देता, मैं अब नहीं काटूंगा, क्योंकि हमारी और आपकी बहुत लंबी चौड़ी गुफ्तगू हो गई। और हाँ, अगर आप इस्लाह कर लेंगे और मतलब तहकीक करेंगे कि देवबंदियों की किताबों में तौहीन रिसालत है या नहीं है, ठीक है, और फिर मुझे बताएंगे कि हाँ वाकई इसमें है या नहीं है, उसके बाद जो भी फैसला होगा वो करूंगा फिर इंशाल्लाह, ठीक है? फिर क्या फायदा, अभी असल अभी मेरे पास बहुत सीन भी आते हैं, सीन भी आते हैं, तुमको खामोश की रहें, सुना करते हैं। देखिए जितनी भी आपकी गुफ्तगू हुई है, जितने भी आपने बातें की हैं, सारी रिकॉर्डिंगें आना ही आना है, आप देख लेना। मैं जो कहता हूँ वो करता हूँ, मैं झूठ कहता ही नहीं, मैं आपको दिलासा दे दूं कि नहीं डालूंगा या डिलीट कर दूंगा, मैं कहता ही नहीं। नरमी से सुन रहा हूँ भाईजान, मैं अपना बता रहा हूँ आपको कि मैं झूठ नहीं बोलता, मेरी झूठ बोलने की आदत नहीं, और ना मेरी ये आदत है कि चेहरा देख के जो है आपके चेहरे पे आपके जैसा बोल दिया, किसी और के चेहरे को देख के किसी और का जैसा बोल दिया, ये भी मेरी आदत नहीं है। मैं बुरा बहुत हूँ, मैं लोगों के सामने बहुत बुरा हूँ, ठीक है, क्योंकि मैं कड़वा हूँ, तो कड़वी चीज इंसान को फायदा देती है, नुकसान नहीं, ठीक है। कड़वा आदमी थोड़ी देर के लिए बुरा तो होता है, मगर कड़वा आदमी किसी का नुकसान नहीं जाता। बात ठीक है आपकी, मेरी बातें जहर लग रही होंगी आपको जरूर। मेरे समझ लग मुझे असल ये बात, मैं सब कुछ समझ गया, आप कहना चाह रहे हैं मेरी जो डिबेट हुई है, जो गुफ्तगू हुई है, उसको डिलीट कर दीजिए, मैं नहीं करूंगा। वजह भी सुन ले, क्या वजह है, वजह भी सुनना, वजह भी नहीं सुनना। भाई आपने अच्छी बात की होगी ना उसमें, अच्छी बात नहीं, मैं हाँ पे हाँ करता रहा, अब तो हाँ पे हाँ क्यों किया आपने? अगर मेरी गलती थी तो वहीं ठोकते आप मुझे। मैं इसलिए हाँ पे हाँ करता रहा, फिर ये दलीलें बताइए, ये अब दलीलें देते रहे, मैंने ये तो नहीं कहा कि मैं आपसे मुनाजरा कर रहा हूँ, अगर मुझे नहीं भाई, मैंने भी आपसे नहीं कहा कि मुनाजरा है, मैंने भी आपको जो है इस्लाही तौर से गुफ्तगू की है, आपने भी इस्लाही तौर से गुफ्तगू की है, ठीक है। मैंने गुफ्तगू इस्लाही तौर पर नहीं की थी हजरत। तो किस तरीके से की थी? भाई से मुबाइसे के ताल्लुक से? आपने तो बोला था कि आपने हमारे घर से तो चलो इल्म गैब साबित कर दिया, देवबंदियों की किताबों से साबित कर दिया, क्या आप कुरान पाक से भी साबित कर सकते हैं? तो मैंने क्या जवाब दिया था? इंशाअल्लाह। जी हाँ, मैं कुरान पाक से भी साबित करूंगा इंशाअल्लाह। तो मैंने कुरान पाक से इल्म गैब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साबित किया या नहीं किया? आपने जो भेजा है सऊदी अरब वाले हजरत यही कह रहा है कि साबित नहीं हो रहा, और मेरे पास भी तशरीकी में बताया बीवी की किताबें नहीं है। अच्छा ये बताइए, आप इल्म गैब गैब कहते किसको हैं? इल्म कहते हैं जानने को, ठीक है, किसी भी चीज का इल्म। आलिम कहा जाता है जानने वाले को। इल्म यानी किसी चीज की जानकारी, ठीक है, इल्म होता है किसी चीज की जानकारी, ठीक है। अब अल्लाह तबारक व तआला ने वो चीजें बताई या नहीं बताई जो कि छुपी हुई हैं, छुपा हुआ खजाना है। हाँ हाँ हाँ, बात चीजें बताऊंगी।
اچھا یہ بتائیے قرآن پاک میں زمین اور آسمان کا، پیڑ پودوں پہاڑ کا، سمندر کا روشن بیان ہے یا نہیں؟ ہے یا نہیں؟ روشن بیان مطلب؟ قرآن پاک میں ساری کائنات کا روشن بیان ہے یا نہیں؟ ہے۔ تو ہمارے نبی کو یہ حاصل ہے یا نہیں؟ کیا ہمارے نبی کو علم حاصل ہے یا نہیں کائنات کا؟ کائنات کا علم؟ ہاں۔ جو قرآن میں بتایا گا وہ علم ہے۔ تو قرآن پاک میں کسی چیز کا علم چھپایا گیا ہے؟ نہیں بتایا گا۔ یہ قرآن کس پر نازل ہوا ہے؟ نبی پر۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے نا؟ تو جب حضور پر نازل ہوا ہے تو قرآن پاک کو حضور سمجھتے ہیں یا نہیں سمجھتے؟ سمجھتے ہیں نا؟ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان چھپی ہوئی چیزوں کا راز جانتے ہیں یا نہیں جانتے جس کو ہم نہیں جانتے؟ ہاں، غیب کہتے ہیں چھپی ہوئی چیز کو، ٹھیک ہے؟ جو دکھ رہی ہے چیز وہ غیب نہیں ہوتی، ٹھیک ہے؟ جو چیز دکھ رہی ہے وہ غیب نہیں ہے، جو چیز چھپی ہوئی ہے وہ غیب ہے یا نہیں؟ اور ہم اس لیے کہتے ہیں کہ ہم سے جو چیز چھپی ہوئی ہے، جو چیز ہم سے غائب ہے، اس چیز کا علم ہمارے نبی کو حاصل ہے، ہمارے نبی جانتے ہیں اس چیز کا علم، یعنی ہم سے جو چھپی ہوئی ہے ہمارے لیے جو غیب ہے، ٹھیک ہے، وہ غیب ہمارے نبی کو معلوم ہے۔ جو ہمارے لیے غیب ہے، جو ہمارے لیے چیز چھپی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، وہ ہمارے نبی جانتے ہیں، وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہے اللہ کی عطا سے۔ جی، پھر وہی کہ مکمل یا بعض، جب میں بتا چکا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے غیب کا علم عطا کرنے کے لیے اپنے نبیوں کو چن لیا، جسے چاہا جس قدر چاہا عطا کیا، ٹھیک ہے، جس قدر چاہا۔ تو میں یہ کہہ رہا ہوں مثال کے طور سے، میں کہہ رہا ہوں کہ اللہ نے ایک ہی چیز کا علم کیوں نہ دیا ہو، تو علم تو دیا نا، تو بس مان لیجئے کہ ہاں اللہ کے نبی غیب کا علم جانتے ہیں، چاہے وہ ایک ہی چیز کیوں نہ ہو۔ اب تو مان لیجئے۔ تو ایسا ہے، پھر آپ اڑے رہیے اسی چیز پر، ٹھیک ہے، اور میں بھی ویڈیو کو ڈیلیٹ نہیں کروں گا۔ کبھی آپ یہ سمجھ رہے ہوں کہ یہ ڈیلیٹ کر دے گا اور یہ والا بھی پھر سے یوٹیوب پہ جائے گا۔ الٹی سیدھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے، ٹھیک ہے، الٹی سیدھی کوئی بات نہیں ہوئی ہے۔ جب دیا تھا اللہ تعالیٰ نے عطا کیا ہے تو پھر آپ کو انکار کیوں ہے؟ آپ جو لگا دیتے ہیں وہ کر دیں گے بار بار۔ اچھا دیکھیے، ارے یار میں تبھی تو کہتا ہوں دیوبندی لوگوں میں عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہوتی۔ علم کہتے ہیں جاننے کو، علم کہتے ہیں جاننے کو، جانکاری کو، اس چیز کا علم ہے یا نہیں ہے، اس چیز کی جانکاری ہے یا نہیں ہے، ٹھیک ہے، علم کہتے ہیں جانکاری کو، کہتے ہیں یا نہیں؟ جانکاری کہتے ہیں نا؟ اچھا، سمندر کا علم ہمارے نبی کو ہے یا نہیں؟ سمندر کا؟ ہاں، ہمیشہ۔ پھر وہی بات کہ ہمیشہ، یہ نبی کی توہین کر رہے ہو یا تعریف کر رہے ہو؟ پوچھ رہا ہوں، میں آپ سے معلوم کر رہا ہوں، کوئی نہیں کر رہا، لیکن میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے۔ ابھی میں نے آپ سے بتایا ہے، میں جو چیز پوچھ رہا ہوں یا میں سمجھنے کوئی نہیں کر رہا ہوں، میں جاننا چاہ رہا ہوں آپ سے، آپ کیا کہنا چاہتے ہیں؟ میں نے ابھی یہ کہہ دیا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہے ایک ہی چیز کا علم رکھتے ہیں، ایک ہی چیز کا علم جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں؟ ہاں بھائی، ہاں